بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو امیزنگ اردو۔ ماں کا زونگا پارٹ 2۔ جیسے ہی عمران نے چھلانگ لگائی، طیارہ پھر مڑ کر اپنی منزل کی طرف چلا۔ کیپٹن شکیل، صفدر اور جولیا دوبارہ اپنی سیٹوں کی طرف بڑھے۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ سخت پریشان تھے کہ نہ جانے عمران پر کیا گزرے گی۔ طیارے کے مسافر سارے ان تینوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چند ایک نے تو ان سے سوالات بھی پوچھے، لیکن انہوں نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ کیمرے کے متعلق ان تینوں میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیمرہ کیا تھا۔ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کیونکہ وہ سیاح بن کر نیو یارک جا رہے ہیں، اسی لیے عمران نے ایک کیمرہ بھی ساتھ لے لیا۔ لیکن اب انہیں معلوم ہوا کہ یہ کیمرہ بشرطے کہ یہ کیمرہ ہو کوئی انتہائی اہم چیز تھی۔ کیپٹن شکیل سوچ رہا تھا کہ وہ شخص کون تھا اور اسے اس کیمرے کے متعلق معلومات کہاں سے ملی۔ صفدر اور جولیا سوچ رہے تھے کہ نیو یارک جا کر وہ کیا کریں گے، کیونکہ انہیں بذات خود کوئی معلومات نہ تھی۔ سب کچھ عمران کو معلوم تھا۔ عمران نہ جانے کب نیو یارک پہنچے، لیکن وہ سب بے بس تھے۔ آئندہ کا لائحہ عمل نیو یارک جا کر ہی بنایا جا سکتا ہے، اسی لیے وہ اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے۔ 1 گھنٹہ کے بعد طیارہ نیو یارک ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا، لیکن صفدر وغیرہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ایئرپورٹ پر ہر طرف پولیس ہی پولیس نظر آ رہی تھی۔ صفدر سمجھ گیا کہ پائلٹ نے اس واقعے کی اطلاع ایئرپورٹ پر دے دی ہے۔ اب سوالات اور تفتیش کا ایسا چکر چلتا نظر آتا تھا کہ جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ اسی لیے صفدر نے شکیل کے کان میں سرگوشی کی اور شکیل نے جولیا سے کہا، طیارہ ابھی تک ایئرپورٹ کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ جیسے ہی طیارہ چکر لگاتا شہر کی ایک طرف سے گزرا، ان تینوں نے اسی لمحے اپنے پستول نکال کر کھڑکیوں سے نیچے پھینک دیے۔ ان کی اس حرکت کو کسی نے محسوس نہ کیا، کیونکہ تمام لوگ اترنے کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ اب ان تینوں نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ کم از کم وہ اس کہانی سے ہی مکر جاتے تو پستول کی عدم موجودگی اس بات میں وزن پیدا کر دیتی۔ آہستہ آہستہ طیارہ ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ جیسے ہی پولیس نے طیارے کو گھیرے میں لیا، مسافر باری باری اترنے لگے۔ صفدر اور جولیا بھی نیچے اترے۔ پولیس کے پاس کھڑی ایئر ہوسٹس نے ان کی طرف اشارہ کیا اور پولیس نے انہیں ایک طرف آنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے چہرے پر حیرت کے تاثرات پیدا کیے۔ اتنے میں کیپٹن شکیل بھی نیچے اتر آیا۔ ایئر ہوسٹس کے اشارے پر اسے بھی ایک طرف بلا لیا گیا۔ انہوں نے ایک آفیسر سے اس بارے میں احتجاج کیا کہ انہیں کیوں روکا جا رہا ہے، لیکن وہ انہیں لے کر ایئرپورٹ کی ایک عمارت کی طرف چلے گئے۔ وی آئی پی روم میں لے جا کر ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی، لیکن وہ تینوں صاف مکر گئے کہ انہیں اس واقعے کا کوئی علم ہی نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی چوتھا ساتھی تھا۔ لیکن پولیس آفیسر مطمئن نہ تھے۔ ان کی تلاشی لے گئی، لیکن ان کے پاس سے پستول قسم کی کوئی چیز بھی برآمد نہ ہوئی۔ پولیس آفیسر حیران تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ بہرحال وہ انہیں مزید تفتیش کے لیے ہیڈ کوارٹر کی طرف لے چلے۔ راستے میں صفدر نے کیپٹن شکیل اور جولیا کی طرف مخصوص لہجے میں اشارہ کیا۔ ان دونوں نے سر ہلا دیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اب وہ فرار کی سوچ رہے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ جیسے ہی کسٹم حد سے باہر نکلے تو صفدر تیزی سے اور ایک 10 منزلہ عمارت کے صدر دروازے میں گھس گیا۔ پولیس آفیسر پریشان ہو گئے۔ وہ صفدر کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ اب کیپٹن شکیل کی باری تھی۔ اس نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کیا اور پاس سے گزرنے والی ایک موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر جمپ لگا دیا۔ موٹر سائیکل تیزی سے گزر رہی تھی۔ یہ ایک اندھی چھلانگ تھی کہ وہ ٹھیک موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ پھر تو وہ موٹر سائیکل سے چمٹ گیا۔ دھکا لگنے سے موٹر سائیکل کا توازن بگڑنے لگا، لیکن موٹر سائیکل سوار بھی کوئی تھا جس نے کنٹرول کر لیا۔ پہلے تو ساتھ جانے والے سپاہی گھبرا گئے، مگر فوراً انہوں نے ریوالور چلا دیے۔ مگر اتنی دیر میں کیپٹن شکیل ان کی رینج سے باہر ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے جولیا کی طرف توجہ دی تو وہ غائب تھی۔ جولیا دراصل انتہائی پھرتی سے ایک کڑی ہوئی کار کے پیچھے رینگ گئی تھی۔ اب تو سب پولیس والے گھبرا گئے، سیٹیوں پہ سیٹیاں بجانے لگے۔ صفدر اس عمارت کے صدر دروازے سے ہوتا ہوا پچھلے دروازے سے گزرتا چلا گیا۔ چلتے چلتے اس نے مونچھیں اتار دی، اپنا کوٹ الٹ کر پہن لیا۔ اس کا کوٹ ڈبل تھا۔ ایسے کوٹ مخصوص طور پر سیکرٹ سروس والوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اب صفدر کافی حد تک بدل چکا تھا۔ اس نے راہ جاتی ایک ٹیکسی روکی اور پھر اس میں سوار ہو کر اسے رائل پارک جانے کو کہا۔ چاروں طرف پولیس پھیل چکی تھی، مگر صفدر اطمینان سے ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا ان حالات پر غور کر رہا تھا جن سے ناگہانی طور پر انہیں نپٹنا پڑ گیا تھا۔ اس نے ٹیکسی ایک مچیروں کی بستی جا کر رکوا دی۔ یہاں اسے معلوم تھا کہ اس کی مملکت کا ایک جاسوس رہتا ہے جو نیو یارک میں اس ملک کی طرف سے کام کرتا تھا۔ ایسے جاسوس ہر ملک میں پھیلے ہوئے ہوتے اور پچھلی بار عمران کے ساتھ نیو یارک آنے پر اس کا پتہ معلوم ہوا تھا۔ پولیس سے بچنے کے لیے اس سے بہتر
بہتر فی الحال اسے کوئی اور جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا جھونپڑیوں سے گزرتا گیا۔ ایک پرانی سی جھونپڑی کے دروازے پر 3 دفعہ مخصوص انداز سے دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھولنے والا ادیڑ عمر کا مچھیرا تھا۔ اس نے حیرانی سے صفدر کو دیکھا۔ صفدر نے آہستہ سے ایک سٹو کا لفظ کہا اور مچھیرے کے چہرے پر پہلی حیرت یکلخ دور ہو گئی۔ وہ ایک طرف کو ہو گیا اور صفدر سر جھکا کر جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ایک دوسری کہانی سنا رہا تھا۔ ادھر کیپٹن شکیل کی موٹر سائیکل کافی دور چلی گئی، لیکن توازن سنبھلتے ہی اس نے موٹر سائیکل روک دی۔ لیکن کیپٹن شکیل نے اپنا فاؤنٹین پین نکال کر اس کی کمر سے لگا دیا اور اسے پستول کی دھمکی دے کر موٹر سائیکل چلانے پر مجبور کر دیا۔ موٹر سائیکل سوار نے موٹر سائیکل دوبارہ بگانا شروع کر دیا۔ کیپٹن شکیل اسے ایک گلی میں لے گیا اور پھر ایک ہی مکے سے موٹر سائیکل سوار کو بے ہوش ہونے پر مجبور کیا۔ اب موٹر سائیکل کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے گلیوں میں بگا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کہاں جائے، کیونکہ اس میک اپ میں کسی ہوٹل میں جانا پولیس کے ہاتھوں میں جانے کے مترادف تھا اور دوسری جگہ اس کے علم میں نہیں تھی۔ آخر موٹر سائیکل اس نے ایک سڑک پر چھوڑ دی اور خود پیدل گلیوں میں چلنے لگا۔ چلتے چلتے جب وہ تھک گیا تو اس نے ایک گلی میں ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ کھولنے والا صورت سے کوئی بدماش نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ آدمی غورایا۔ میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، مجھے پناہ دو، کیپٹن شکیل نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ پولیس؟ اچھا اندر آ جاؤ۔ اس آدمی نے راستہ چھوڑ دیا۔ صدر دروازے کے آگے ایک تنگ سی گلی تھی۔ کیپٹن شکیل اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ گلی سے گزر کر وہ ایک بہت بڑے ہال میں آ گئے۔ یہاں میزیں بچھی ہوئی تھی جن پر جوا کھیلا جا رہا تھا۔ کیپٹن شکیل اس اتفاق پر حیران تھا کہ کس طرح وہ خود بخود ایک خفیہ جوئے خانے میں آ نکلا۔ وہ گروہ کے سردار کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر فی الحال وہ پولیس کے پندے سے بچ جائے گا۔ وہ شخص ہال میں سے گزر کر پھر ایک راہداری میں گھس گیا۔ کیپٹن شکیل اس کے پیچھے تھا۔ راہداری سے چلتے چلتے وہ شخص ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، ایک غراہٹ آمیز آواز آئی۔ دروازہ کھل کر کیپٹن شکیل اور وہ شخص اندر گیا۔ اندر ایک لمبی چوڑی میز کے پیچھے ایک باری برکم شخص بیٹھا تھا۔ میز پر شراب کی بوتل کھلی پڑی تھی۔ اس شخص کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا بات ہے بوٹو، یہ کون ہے؟ اس باری برکم آواز نے پوچھا۔ کیپٹن شکیل نے اس سردار کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ نیو یارک کا مشہور غنڈا جیگر ہے، جسے نیو یارک کی پولیس کامتی ہے، اور جیگر اس کا دوست تھا۔ چند سال پہلے جب وہ ایک ملٹری آپریشن کے لیے یہاں موجود تھا تو ایک موقع پر اتفاقی طور پر اس نے جیگر کی جان بچائی تھی۔ چنانچہ جیگر اس کا ممنون تھا۔ وہ کافی دن جیگر کے ساتھ ایک ہوٹل میں بھی رہا۔ جیگر اس ہوٹل کا مالک تھا، لیکن اس کے اس خفیہ اڈے کا پتہ کیپٹن شکیل کو نہیں تھا۔ یہ تو اتفاق تھا کہ وہ یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جناب، یہ شخص غیر ملکی ہے اور پولیس سے بچنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ بوٹو نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو ہر شخص کو اس جگہ لے آتے ہو سکتا ہے یہ کوئی سی آئی ڈی کا درندہ ہو۔ جیگر غورایا۔ نہیں جناب، بوٹو سے سی آئی ڈی کا کوئی کارندہ چھپا ہوا نہیں، میں سی آئی ڈی کا کارندہ نہیں ہوں۔ جیگر، کیپٹن شکیل نے اطمینان سے کہا۔ جیگر نے جیسے ہی اپنا نام سنا بری طرح چونکا، اور جیگر کے ساتھ ساتھ بوٹو بھی بری طرح چونکا تھا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ جیگر کی آنکھیں کیپٹن شکیل پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیپٹن شکیل نے جواب دینے کے بجائے بوٹو سے انیمیا کی بوتل لے آنے کو کہا۔ جیگر، میں میک اپ میں ہوں، اسی لیے تم مجھے نہیں پہچان سکے۔ امونیا کی ایک بوتل منگواؤ، پھر مجھے پہچان جاؤ گے۔ میں تمہارا دوست ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جیگر نے کاٹکانے والے انداز میں کہا۔ شکیل، جس نے آج سے 5 سال پہلے پیراڈائز ہل پر تمہاری جان بچائی تھی۔ او، شکیل ہو؟ ٹھیک ہے، تمہارا جسم اس سے ملتا ہے، لیکن چہرہ، خیر تم ہی کہہ رہے ہو کہ تم میک اپ میں ہو۔ پھر اس نے بوٹو کو امونیا کی بوتل لانے کو کہا۔ بوٹو نے اسی کمرے کی ایک الماریہ سے امونیا کی بوتل شکیل کو دے دی۔ کیپٹن شکیل نے بوتل سے منہ دھویا اور پھر رومال سے پونچھ ڈالا۔ اب وہ اپنی اصلی شکل میں تھا۔ جیگر نے اسے دیکھتے ہی خوشی کا نعرہ لگایا اور کرسی سے اٹھ کر کیپٹن شکیل کو گلے سے لگا لیا۔ تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا، اور کیپٹن نے من گڑت کہانی سنا کر جیگر کو مطمئن کر دیا۔ ادھر جولیا کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فوری طور پر تو وہ ایک کار کے پیچھے رینگ گئی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر جائے، کیونکہ پولیس کی سیٹیاں اور پیٹرول کاروں کے سائرن سے پورا علاقہ گونج اٹھا تھا۔ اب چیکنگ کا دائرہ ہر لمحہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جولیا تیزی سے ایک کار سے دوسری کار کے پیچھے رینگ رہی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ جگہ اس پورے علاقے کی پارکنگ پیلس تھی، اسی لیے سینکڑوں کی تعداد میں کاریں کھڑی تھیں۔ جولیا نے جیسے ہی ایک کار کی سائڈ سے سر نکالا
निकाला। उसे सामने ही दो सिपाही अपनी तरफ आते नजर आए। वो फौरन कार के दूसरी तरफ मुड़ गई। उसने एक लम्हा के लिए सोचा और फिर कार के दरवाजे के हैंडल पर जोर लगाया। इत्तेफाक से कार लॉक नहीं थी, इसीलिए फौरन दरवाजा खुल गया। जूलिया तेजी से पिछली सीटों के दरमियान दुबक गई और दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। वो सिपाही तो गुजर गए, लेकिन अब हर तरफ सिपाहियों के भारी बूटों की आवाजें आसपास हर चार तरफ से आना शुरू हो गई। जूलिया हैरान थी कि अब वो क्या करे, क्योंकि कब तक यहाँ पड़ी रहती। अगर कार के मालिक आ जाए तो वो फौरन गिरफ्तार हो जाएगी, लेकिन अब बाहर निकलने का भी मौका बाकी नहीं रहा था, क्योंकि अब तो पुलिस के कदमों की आवाजें उसे मुस्तकिल कार के इर्द गिर्द आनी शुरू हो गई थी। इसीलिए वो तन बतकदीर वहीं दुबकी पड़ी रही। अचानक उस कार का दरवाजा खुला और एक शख्स ड्राइवर की सीट पर आकर बैठ गया और फिर कार आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी। जूलिया ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि कार वाला अकेला था। अगर उसके साथ दूसरे लोग होते तो वो फौरन पकड़ी जाती। अब कार खुली सड़कों पर आ गई थी। उसकी रफ्तार भी काफी तेज थी। जूलिया ने आहिस्ता से सीटों से बाहर निकलकर इधर उधर देखा। उसने देखा कि कार चलाने वाला एक खुशपोश नौजवान था जो बड़े इत्मीनान से कार चला रहा था। उसे शायद मालूम नहीं था कि वो पुलिस की मतलूबा मुजरिमा को अपने साथ लिए जा रहा है। जूलिया अब आइंदा के मुतालिक सोचने लगी, क्योंकि इस बार उनके साथ अजीबो गरीब वाकया पेश आया था। न जाने कैप्टन शकील और सफदर कहाँ होंगे। अचानक कार एक कोठी के कंपाउंड में मुड़ गई। जूलिया दोबारा सीटों में दुबक गई। कार आहिस्ता आहिस्ता पोर्च में जाकर रुकी। नौजवान ने कार का दरवाजा खोला और सीटी बजाता हुआ कोठी में दाखिल हो गया। जूलिया आहिस्ता से बाहर निकली और कोठी के सदर दरवाजे से बाहर निकल गई। अब वो सोच रही थी कि कहाँ जाए और पुलिस से किस तरह बचे। एक लम्हा के लिए उसने सोचा कि रात किसी गैर मारूफ होटल में गुजार दे, लेकिन उसे मालूम था कि पुलिस सबसे पहले होटलों को छानेगी। आखिर उसने ये सोचा कि किसी कोठी में बतौर पेइंग गेस्ट के रह पड़ेगी। न्यूयॉर्क में पेइंग गेस्ट का रिवाज आम था, इसीलिए जूलिया ने नजदीक ही एक कोठी का रुख किया। 3-4 कोठियां फिरने के बाद आखिरकार उसे एक माकूल जगह मिल गई। अब कोठी में वो हर तरह महफूज हो गई। इमरान कैमरा कांधे पर लटकाए दोबारा पहाड़ी पर चलने लगा। उसकी रफ्तार खासी तेज थी। वो जल्द अज जल्द पहाड़ी पर पहुंचना चाहता था। तकरीबन 1 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद वो पहाड़ी की दूसरी तरफ एक बहुत बड़े मैदानी इलाके में था, जिसमें जा बजा बड़े बड़े टीले थे। दरमियान में बलकाती हुई एक सड़क मौजूद थी। इमरान सड़क पर चलने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि यहाँ के लोगों ने पैराशूट उतरते जरूर देखे होंगे, इसीलिए अगर उन्होंने यहाँ की पुलिस को इत्तला दे दी तो पुलिस ये तमाम इलाका चांद मारेगी। और इमरान इन हालात में किसी तौर पर पुलिस के हाथों में नहीं आना चाहता था, लेकिन काफी देर चलने के बावजूद उसे कोई पुलिस में नजर नहीं आया। अब उसे इत्मीनान हो गया कि या तो शायद किसी ने पैराशूट उतरते नहीं देखा, अगर देखा है तो इत्तला नहीं दी, या यहाँ अमूमन पैराशूट उतरते रहते होंगे, इसीलिए किसी ने तवज्जो नहीं दी। बहरहाल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सूरत हाल फायदेमंद थी। वो तेजी से सड़क पर चलता गया। अब वो मैदान खत्म हो गया था और दूर तक खेतों का सिलसिला नजर आ रहा था। इमरान के कपड़े भी इसी असना में सूख गए थे, इसीलिए अब वो चलने में ज्यादा तेजी पैदा कर सकता था। वो सोच रहा था न जाने कैप्टन शकील, सफदर और जूलिया पर क्या गुजरी होगी। चलते चलते वो एक गांव में पहुंच गया। यहाँ आकर उसे मालूम हुआ कि ये अमेरिका का एक दूर उफ्तादा गांव है और न्यूयॉर्क यहाँ से तकरीबन 200 मील है। यहाँ से नजदीक तरीन शहर 40 मील था। अब वो जल्द से जल्द उस शहर में पहुंचना चाहता था। आखिर उसे एक शख्स ऐसा मिल गया जो अपनी वैगन पर सब्जी ले जाकर शहर में फरोख्त करता था। इमरान भी उसके साथ शामिल हो गया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो लोग शहर पहुंच गए। इमरान सीधा एक होटल में गया, जहां जाकर उसने खाने का ऑर्डर दिया और खाने के इंतजार का वक्त काटने के लिए उसने अखबार उठा ली। लेकिन पहले सिफे पर नजर पड़ते ही वो चौंक उठा, क्योंकि उसमें 2 मर्दों और एक औरत का एयरपोर्ट से पुरस्कार तौर पर गायब होने का हाल बताया गया था कि किस तरह वो पुलिस को जुल देकर गायब हो गए और इंतहाई कोशिशों के बावजूद अब तक उनका पता न चल सका। इसमें उनके किसी चौथे साथी के मुतालिक भी लिखा हुआ था। अखबार में उन तीनों के हुलिये भी दर्ज थे, जिससे इमरान समझ गया कि ये शकील, सफदर और जूलिया हैं। वो सोच रहा था कि ये तीनों न्यूयॉर्क में कहाँ छुपे होंगे। हालांकि अखबार में तो दर्ज नहीं था, लेकिन वो समझ गया कि तैयारे के पायलट ने पुलिस को इत्तला दी होगी और वो तीनों मकामी पुलिस से बचने के लिए फरार हो गए होंगे। इन हालात में अब उसके लिए और भी जरूरी हो गया था कि वो जल्द अज जल्द न्यूयॉर्क पहुंचे और हालात को संभाले, क्योंकि कल से मीटिंग शुरू हो रही थी। वेटर खाना ले आया तो उसने भी जल्दी जल्दी खाना खाया और बिल अदा करके बाहर निकल आया। होटल के बाहर एक पब्लिक बूथ था। इमरान उसमें घुस गया
गया और डायरेक्टरी से एयरपोर्ट इंक्वायरी नंबर देखकर उसने एयरपोर्ट इंक्वायरी को रिंग की। यह उसकी इंतहाई खुशकिस्मती थी या महज एक इत्तेफाक के 10 मिनट के बाद एक फ्लाइट न्यूयॉर्क जा रही थी। वो फौरन टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट रवाना हो गया और तकरीबन 45 मिनट बाद वो न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर उतर रहा था। ये चूंकि एक मकामी सर्विस थी इसीलिए किसी ने भी उसे चेक ना किया और न ही उसका पासपोर्ट देखा और वो इत्मीनान से चलता हुआ एयरपोर्ट की बिल्डिंग से बाहर आ गया। अब वो फौरन CIB के सरबराह से मिलना चाहता था क्योंकि कल की मीटिंग की सरबराही भी CIB ही कर रही थी। चुनांचा अपनी आमद की इत्तला भी उन्हें देनी थी और इसके बाद अपने साथियों को भी ढूंढना था। इसीलिए उसने टैक्सी ड्राइवर को मिंकन रोड पर चलने को कहा। मिंकन रोड पर एक बहुत बड़ी इमारत में CIB का हेडक्वार्टर था। इमरान यूं ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसे एक चौकीदार ने दरवाजे पर ही रोक लिया। ए मिस्टर, तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? चौकीदार की आवाज में तलखी नुमाया थी। अपनी खाला के घर जा रहा हूँ। तुम्हारी कोई दोस्त है? इमरान अपने मखसूस लहजे में बोला। तुम्हारा दिमाग खराब है, चलो भागो यहाँ से। चौकीदार हैरत से उस खुशपोश शख्स को देख रहा था। क्यों, क्या मेरे खालू मिस्टर कैपल इस घर में नहीं रहते? इमरान ने जिस्म को लचकाते हुए कहा। मिस्टर कैपल? हाँ हाँ, मिस्टर कैपल वही मोटे से बंद गली की जैकेट पहने और नीले रंग का मफलर पहनते हैं, मुंह में हर वक्त पाइप रखते हैं, वही तो है मेरे खालू। इमरान तेजी से बोलता चला गया। मिस्टर कैपल है तो सही मगर ये दफ्तर है, घर नहीं। चौकीदार अब नरम पड़ गया। चलो घर ना सही, दफ्तर ही सही। कैपल साहब को जाकर कहो कि आपका भतीजा इमरान आया है। देखो कैसे बुलाते हैं हमें। अगर ना बुलाया और मुझे डांट पड़ गई तो? चौकीदार शशोपंज में बोला। अगर ना बुलाया तो 100 रुपए दूंगा और अगर बुलाया तो रुपया तुम मुझे देना। चौकीदार अब भी शशोपंज में था। इमरान की खुश पोशाकी को देखकर वो जाना चाहता था लेकिन उसकी बातें उसे कोई मखबूतुल खवास साबित कर रही थी। बहरहाल चंद लम्हे की हिचकिचाहट के बाद वो अंदर चला गया। इमरान गेट से गुजरने वाली लड़कियों को देखकर सीटियां बचा रहा था और एक लड़की को तो उसने बाकायदा आंख मार दी। लड़की मुस्कुराई और रुक गई मगर इमरान इस दौरान दूसरों को आंख मारने में मशगूल हो गया। लड़की के चेहरे पर हैरत के आसार जाहिर हुए और वो सर को झटकते हुए अंदर चली गई। चंद लम्हे बाद चौकीदार वापस आ गया और इमरान को अंदर चलने को कहा। मेरे 100 रुपए तो दो, शर्त लगी हुई है, कोई मजाक है क्या? इमरान अड़ गया। चौकीदार ने दांत निकाल लिए और इमरान एक छोटा नोट उसके हाथ में रखता हुआ अंदर चला गया। चौकीदार ऐसे देख रहा था जैसे 7वें अजूबे को देख रहा हो। अंदर इमरान आराम से मिस्टर कापल से बातें कर रहा था। मिस्टर कापल, बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूँ। इमरान ने उसे तमाम वाकया बताते हुए कहा। मैंने अभी अपने साथियों को ढूंढना है, मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं। परेशानी के आलम में होंगे। आप बराए मेहरबानी मिस्टर कापल पुलिस को उनके बारे में खास हिदायत जारी कर दें। वो तो हो जाएगा मगर इमरान साहब वो कैमरा कैसा था जिसके लिए इतना बड़ा हंगामा हुआ? मिस्टर कापल ने पाइप को मुंह से लगाते हुए सवालिया अंदाज में पूछा। ये मैं मीटिंग में ही बता सकूंगा। अच्छा, इजाजत, इमरान ने उठते हुए कहा। मिस्टर कापल एहतरामन खड़े हुए और अपना हाथ आगे बढ़ाया मगर इमरान इंतहाई लोफराना अंदाज से सीटी बजाता हुआ उनके उठते हुए हाथ को नजरअंदाज करते हुए बाहर चला गया और मिस्टर कापल चंद लम्हे तक हैरान खड़े रहे। ये एक सजा सजाया और खासा वसी वरीज मीटिंग हॉल था। तमाम हिफाजती इंतजामात किए गए थे। 14 मुल्कों के 4 नुमाइंदगान मौजूद थे। एक काउंटर पर इमरान के साथ जूलिया, सब्तर और शकील बैठे हुए थे। इमरान के चेहरे पर हिमाकत की तहें इंतहाई गहरी थी। अमेरिका के मिस्टर कापल इस मीटिंग के सदर थे। चुनांचे इफ्तिताही तकरीर भी उन्होंने ही की। हजरात, यहाँ इन 14 मुल्कों के नुमाइंदगान मौजूद हैं जिनके मुल्कों में माकाजुंगा की तंजीम ने जो हशर बपा कर दिया है। ये दहशत अंगेज और तहरीब पसंद तंजीम सारी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रही है, लेकिन हमने तहैया किया हुआ है कि इस नाम नेहाद तंजीम से जो यकीनन गुंडों और कातिलों पर मुश्तमिल है, किसी हालात में भी शिकस्त नहीं मानेंगे। हम चाहते हैं कि मुश्तरका तौर पर कोशिश करके इस काली और भयानक तंजीम की जड़ें उखाड़ दी जाएं। इस सिलसिले में आप सब हजरात को यहाँ मिल बैठने की तकलीफ दी गई है ताकि आप सब मिलकर इस बारे में कोई फैसला करें। ये कहकर वो बैठ गए। इसके बाद बरतानिया का कोई नुमाइंदा हॉली ग्रेप खड़ा हुआ। मोअज़्ज़िज़ हजरात, जैसे मिस्टर कापल ने आपके सामने वजाहत की है, माकाजुंगा एक इंतहाई भयानक तंजीम है। इस सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे मुल्क में भी माकाजुंगा ने तबाही मचाई थी। हमने पूरी कोशिशों के बाद कदरे काबू पा लिया है। हम दरअसल इसके हेडक्वार्टर की तलाश में थे। हमारे जासूसों ने हमें इतला दी है कि इनका हेडक्वार्टर एशिया के किसी मुल्क में है और ये तंजीम एशियाई गुंडों पर मुश्तमिल है। इसीलिए मेरा ख्याल है हमें दायरा तहकीक में शामिल करना चाहिए। अभी
वो इतना ही कह पाया था कि जापान का नुमाइंदा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। साहिब सदर मिस्टर होली ग्रेप ने आपके सामने अभी अभी जो कुछ कहा है, मैं इसकी पुरजोर तरदीद करता हूँ। उन्होंने एशिया पर इल्जाम लगाया है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि ये तंजीम एशिया की नहीं, यूरोप की है। यूरोप के सफेद फार्म ही इस किस्म के जहनी मरीज होते हैं। ये कहकर वो बैठ गया। इस आपस की लड़ाई की वजह से सारे हॉल में अफरा तफरी मच गई। मीटिंग एशिया और यूरोप के दो ग्रोहों में बढ़ गई। हर शख्स अपने आप को बरियों जिम्मा करार दे रहा था कि साहिब सदर ने मेज बजाई। जब लोग जरा खामोश हुए तो उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है कि मिस्टर होली ग्रेप ने हमारे एशिया के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदे पर बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाकर रुझान की निशानदेही ही नहीं की। हम सब यहाँ बराबर हैं। हमें बजाय आपस में लड़ने के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस बंटवारे से माकाज़ूंगा को बराह रास्त फायदा मिलेगा। इसीलिए आप हजरात इस इलाकाई तासुब की सतह से बुलंद होकर कोई ठोस प्रोग्राम बनाए। मैं एशिया के मुअज़्ज़ज़ मुल्क के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदे मिस्टर इमरान से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस सिलसिले में आकर हमको कुछ मालूमात बहम पहुंचाएं। सबकी नजरें इमरान की तरफ उठी, लेकिन इमरान इस तरह सर झुकाए मेज को देख रहा था जैसे उसकी हालत में कोई तब्दीली ही ना आई हो। अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार होने लगी। जूलिया का चेहरा नदामत से सुर्ख पड़ता गया, लेकिन इमरान की हालत में कोई फर्क ना आया। आखिर तंग आकर सफदर ने उसके पहलू में चुटकी भरी और इमरान यकदम से ऐसे उछल पड़ा जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। अब तो हॉल में दबे दबे कहकहे बुलंद होने लगे। क्या बात है, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं? इमरान ने अजीब नजरों से सबको देखते हुए सफदर से पूछा। इनका दिमाग खराब हो गया है, जूलिया ने झिझलाकर कहा। छी बुरा हुआ। ये कहकर इमरान ने अपना सर फिर मेज पर झुका लिया। इमरान साहब, मैंने आपसे अर्ज किया है। आखिर मिस्टर कापल को दोबारा बोलना पड़ा। इमरान ने एकदम चौंकते हुए कहा, अर्ज करें। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस तंजीम के मुतालिक अपने ख्यालात पेश करें। माफ कीजिए, मैं किसी होटल का वेटर नहीं कि लोगों को चीजें पेश करता फिरूं। इमरान ने गुस्से से सुर्ख होते हुए कहा, और मिस्टर कापल और दूसरे मंदुबीन एक दूसरे की तरफ इस तरह से देखने लगे जैसे या तो उनका दिमाग खराब हो गया हो या फिर इमरान का। मिस्टर इमरान, ये हमारे मुल्क के वकार का सवाल है। आप मजाक छोड़ दें, ये इंतहाई संजीदा मीटिंग है। आखिर कैप्टन शकील ने उसे समझाया। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो मैं संजीदा हो जाता हूँ। इमरान ने आखिरकार हथियार डालते हुए कहा, बुरी बात है इंतजार करना। इंतजार सिर्फ सनफे नाजुक का किया जाता है मिस्टर कापल। इमरान एक्स2 से तुम्हारी शिकायत करूंगी, जूलिया ने इंतहाई गुस्से के आलम में कहा। अरे तो क्या मैं उससे दबता हूँ? ये कहकर इमरान ने एकदम जेब से पिस्तौल निकाल लिया और नाली का रुख सदर साहब मिस्टर कापल की तरफ कर दिया। हैंड्स अप मिस्टर कापल, खबरदार अगर हरकत की तो। सारा हॉल एकदम हक्का बक्का रह गया। सब सरासीमा होकर अपनी अपनी नशस्तों से उठ खड़े हुए। जूलिया और सफदर भी एक लम्हे के लिए घबरा गए, लेकिन कैप्टन शकील के पिस्तौल का रुख भी मिस्टर कापल की तरफ हो गया। मिस्टर इमरान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये मेरी तौहीन है। मैं इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बर्दाश्त करें या ना करें, आप गलत हरकत ना करें। इमरान ने सर लहजे में कहा, कैप्टन शकील, तुम मिस्टर कापल की तलाशी लो और देखिए जिस साहब ने भी मुदाखलत की मैं बेदरग गोली मार दूंगा। कैप्टन शकील मिस्टर कापल की पुश्त पर पहुंचा। उसने मिस्टर कापल की जेब से एक छोटा सा सियाह बॉक्स और एक रिवॉल्वर निकाल लिया। सियाह बॉक्स को देखते ही मिस्टर कापल ने भागने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन शकील के रिवॉल्वर से एक शोला लपका और मिस्टर कापल के ऐन दिल पर रंगीन सा सुराख करता गया। मिस्टर कापल फर्श पर गिर पड़े। अब इमरान ने तमाम मंदुबीन की तरफ देखते हुए कहा, आप सब हजरात अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखे। मैं अभी इस मामले की वजाहत कर देता हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई साहिब मुदाखलत करने की कोशिश ना करे। फिर इमरान ने जूलिया और सफदर को हुक्म दिया कि वो रिवॉल्वर लेकर मुख्तलिफ कोनों में जाएं और सब पर नजर रखें। जो भी मुश्तबे हरकत करे फौरन उसे गोली मार दें। तमाम मंदुबीन गुमसुम अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। उन सबके चेहरे जरते और मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। हजरात, आप सबकी हैरत बचा है, लेकिन ये मिस्टर कापल असली मिस्टर कापल नहीं है। इमरान के इस इंकिशाफ ने सबको और भी बौखला दिया। वहाँ हाल में हल्की हल्की सी सरगोशियां शुरू हो गयी। सुनिए हजरात, आपको सबूत चाहिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उसने एक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ इशारा करके कहा, अमोनिया की बोतल ले आओ। गार्ड चंद लम्हे बाद अमोनिया की बोतल ले आया। कैप्टन शकील, अमोनिया की बोतल से मिस्टर कापल का मुंह धो डालो। कैप्टन शकील ने अमोनिया से मुर्दा मिस्टर कापल का मुंह धोना शुरू कर दिया। मेकअप उतरना शुरू हो गया। अब मिस्टर कापल के बजाय एक और शख्स का चेहरा सामने आ गया। देखिए हजरात, आप सब ने मुलाहिजा फरमा लिया कि ये मिस्टर कापल
नहीं है। आपको इन पर कैसे शक हुआ? इंडोनेशियाई मंदूब ने इमरान से सवाल किया। सब्र करें, मैं सब कुछ आपको तफसील से बता रहा हूँ। इसके बाद इमरान ने सफर के दौरान पेश आने वाला वाकया मेंबरान को तफसील से बताया। तो हजरात, जब मैं मिस्टर कापल के पास मिलने के लिए गया तो मैंने नोट किया कि मिस्टर कापल मुझे देखकर एक लम्हे के लिए चौंके। इसके बाद मेरे कांधे पर लटके हुए कैमरे को देखकर उनके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया हुए। इससे मैं कुछ ठग गया, क्योंकि अगर वो असल मिस्टर कापल होते तो उन्हें मेरे इस वाकये का कैसे इल्म हो गया। इसके अलावा आज मीटिंग के दौरान उनका हाथ बार बार जेब में जा रहा था और मिस्टर कापल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो बात करते वक्त हमेशा अपने बाएं कान को मरोड़ते रहते हैं। ये उनकी आदत बन चुकी है। इस मिस्टर कापल ने उनकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से इसे ये याद नहीं रहा कि मिस्टर कापल बाएं कान मरोड़ते थे। ये भूलकर दाएं कान की लो बार बार मरोड़ रहा था। चुनांचे मैंने काफी देर से इनकी हरकत को चेक किया। आखिर मुझे यकीन हो गया और इसका नतीजा आपके सामने है। आप हजरात समझ चुके होंगे कि ये माकाजुंगा का कोई एजेंट है। असली मिस्टर कापल कहाँ गए, इसका पता चलाना अमरीकी हुकूमत का काम है। मैं आप सब से इस्तेदा करूंगा कि आप सब मिलकर किसी और को सदर चुन लें ताकि मीटिंग की कार्रवाई चलती रहे। हमारे पास वक्त थोड़ा है और हमने काम ज्यादा करना है। ये कहकर इमरान अपनी सीट पर बैठ गया। हॉल में बैठे हुए सब लोगों के चेहरों पर इमरान के लिए तहसीन के आसार थे और जूलिया और सब्तर बेचारे अपने रवैये पर शर्मिंदा थे। इमरान बहरहाल इमरान था। सब मेंबरों ने मुतफ़िका तौर पर रूसी मंदूब एब्लियन ब्रॉडरे को सदर चुन लिया और मीटिंग की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। एब्लियन ब्रॉडरे ने सदर बनते ही इमरान को मुखातिब किया। इमरान साहब, अब सबकी नजरें आप पर लगी हुई हैं। आप बराए मेहरबानी हमें उस कैमरे के मुतालिक कुछ बताएं कि ये क्या है और क्यों इसको इतनी अहमियत दी जा रही है। इमरान ने खड़े होकर वो कैमरा कंधे से उतारा, फिर उसके कवर को खोला। इसमें एक अजीब साख की मशीन निकल आई जो बज़ाहिर तो कैमरा मालूम हो रहा था, लेकिन उसकी साख इंतहाई पेचीदा थी। इमरान ने मेंबरान को मुखातिब करते हुए कहा, हजरात, ये मशीन जो बज़ाहिर कैमरा नजर आती है एक इंतहाई खतरनाक मशीन है जिसे मुजरिमों ने बारहा इस्तेमाल किया है। जब मैंने अपने मुल्क में माकाजुंगा का हेडक्वार्टर तबाह किया तो मैं इस मशीन को उड़ाने में कामयाब हो गया था। इसको आप हाई पावर ट्रांसमीटर समझ लीजिए। इसे सही तरीके से ऑपरेट करके आप दुनिया के हर रेडियो में गड़बड़ मचा सकते हैं और अगर चाहे तो आपकी आवाज उस ट्रांसमिशन से पूरी दुनिया में फैल सकती है। इस किस्म की मशीन से माकाजुंगा ने दुनिया की तमाम नशरियात जारी कर दी थी। ये साइंस का एक नादिर शाहकार है। इसमें एक इंतहाई पेचीदा निजाम काम कर रहा था जो कम बड़ी बड़ी मशीनें बखूबी अंजाम नहीं दे सकती। उसे ये हल्की पुल्की सी मशीन बाआसानी अंजाम दे लेती है और फिर इसे जहाँ चाहे जब चाहे ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका पता चलाना इंतहाई दुश्वार है, क्योंकि जब तक आप तहकीक करेंगे ये मशीन उस जगह से सैकड़ों मील दूर चली गई होगी। अब आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो चुका होगा। क्या आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं? जर्मनी के मंदूब ने सवाल किया। जी हाँ, मैंने 10 दिन तक इस पर तहकीकात की है और अब मैं बखूबी इसे ऑपरेट कर सकता हूँ। जापानी मंदूब ने खड़े होकर इमरान से सवाल किया कि ठीक है, ये चीज इंतहाई अहमियत की हामिल है और इसका हमारे कब्जे में आ जाना नेक फॉल है, लेकिन हो सकता है इस किस्म के दीगर सेट अभी तक माकाजुंगा के कब्जे में होंगे। चुनांचे इस सूरत में ये हमारे लिए बेकार साबित होगी। आपका कहना बजा है, लेकिन इसका एक और फायदा भी है कि इसमें मेरी तहकीकात के मुताबिक ऐसा निजाम मौजूद है कि अगर इस किस्म के दीगर सेट से अगर कोई कॉल नशर की जाए तो हम उसके महल वकू का बखूबी पता चला सकते हैं। चुनांचा पिछले दिनों इस पर जब एक कॉल नशर की गई तो मैं उस वक्त इस मशीन पर काम कर रहा था। मैंने इससे इसके हेडक्वार्टर का पता चला लिया। हेडक्वार्टर का पता? सब चौंक उठे। जी हाँ, मैंने माकाजुंगा के हेडक्वार्टर का पता मालूम कर लिया है। सब मेंबरान हक्का बक्का रह गए। वो सब पुरिश्तियाक नजरों से इमरान की तरफ देख रहे थे। उन सब के चेहरों पर इंतहाई तहसीन के आसार नजर आ रहे थे। चंद यूरोपियन मेंबरों के चेहरों पर खजालत के असरात भी साफ मालूम हो रहे थे, क्योंकि वो लोग मशरिक को हमेशा से निकम्मा और कुन जहन समझते आ रहे थे, लेकिन अब वो देख रहे थे कि मशरिक उनसे बाजी ले जा रहा था। सफदर और जूलिया की गर्दन फख्र से उकड़ती चली जा रही थी और जूलिया तो इमरान को ऐसी नजरों से देख रही थी जिसमें बेपनाह प्यार जाहिर हो रहा था और कैप्टन शकील वैसे सपाट का सपाट बहता हुआ था। ऐसा महसूस होता था कि दुनिया की कोई अजीब खबर या इंकिशाफ उसके लिए नई ना हो। उसके चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानता हो।
ہو۔ عمران صاحب ذرا جلدی بتائیے ماکازونگا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، کیونکہ اب ہم اپنے اشتیاق پر قابو نہیں پا سکتے۔ ملیشیا کے نمائندے نے کہا ماکازونگا کا ہیڈ کوارٹر براعظم افریقہ کے جنگلوں میں کسی جگہ واقع ہے۔ عمران نے انکشاف کرتے ہوئے کہا افریقہ میں؟ تقریباً سب ممبروں کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس بھیانک تنظیم کا ہیڈ کوارٹر افریقہ ہی میں ہے؟ صدر نے پوچھا اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ مشین آپ کو مہیا کر سکتی ہے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے اسے آپریٹ کرتا ہوں، پھر آپ کو اس کا ثبوت مل جائے گا۔ یہ کہہ کر عمران نے اس مشین کے ایک سوئچ کو دبایا، فوراً مشین میں مختلف چھوٹے چھوٹے رنگین بلب جل اٹھے۔ عمران نے ایک بٹن کو پش کیا تو ایک ہلکی سی آواز اس میں سے نکلنے لگی۔ سب لوگ غور سے اس آواز کو سن رہے تھے۔ کوئی شخص دوسرے کو ہدایات دے رہا تھا کہ فرازر قبیلے کو فوراً ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ ہمارے ہیڈ کوارٹر میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ آواز آنی بند ہو گئی اور عمران نے دوسرا سوئچ دبا کر مشین بند کر دی، لیکن اس میں تو کہیں افریقہ کا ذکر نہیں آیا۔ برطانیہ کے ہولی گریپ نے فوراً اعتراض کیا معاف کیجئے گا مسٹر چولی گریپ، میرا نام چولی گریپ نہیں بلکہ میرا نام ہولی گریپ ہے۔ صفدر اور شکیل چولی گریپ کے لفظ پر پوری طرح مسکرا پڑے۔ ایک بار پھر معاف کیجئے گا مسٹر ہولی گریپ، مجھے نام صحیح سے یاد نہیں پڑتے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو اس میٹنگ میں بھیجا کس نے ہے؟ کیا مطلب؟ ہولی گریپ سٹ پٹا گیا۔ میں نے گریک میں گفتگو نہیں کی جو آپ اس کا مطلب نہیں سمجھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اپنے کسی قابل آدمی کو بھیجے گا۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ ہولی گریپ پٹ پڑا اور اوہو بری بات، آپ غصے میں آ رہے ہیں۔ بات یوں ہے کہ آپ نے اس گفتگو کے دوران جو اس ٹرانسمیٹر میں ہوئی ہے لفظ فرازر قبیلہ سنا ہوگا۔ فرازر قبیلہ دراصل افریقہ کے گھنے جنگلوں میں ایک قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ آدم خور ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماکازونگا کا ہیڈ کوارٹر افریقہ میں ہے۔ یہ کہہ کر عمران بیٹھ گیا۔ ہال میں اس انکشاف پر تبصرے ہونے لگے اور عمران جولیا سے مخاطب ہو کر بولا اب تو خوش ہو، اور جولیا مسکرانے لگی۔ آخر کار صدر نے سب ممبروں کو مخاطب کر کے کہا حضرات، عمران صاحب کے اس انکشاف سے اب آپ لوگوں کو یہ تو یقین ہو گیا ہے کہ یہ ہیڈ کوارٹر یہاں ہے۔ چنانچہ اب میرا خیال ہے کہ ایک پارٹی ترتیب دی جائے جس میں سب ملکوں کے جاسوس ہوں اور عمران صاحب کی قیادت میں جا کر اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کریں۔ سب نے تائید میں ہاتھ اٹھائے، لیکن عمران نے افریقہ جانے سے یکسر انکار کر دیا۔ میرا کام ختم ہو گیا، چند مجبوریوں کی وجہ سے میں افریقہ نہیں جا سکتا۔ اب یہ کام آپ لوگوں کو خود کرنا ہوگا۔ صفدر اور جولیا حیران رہ گئے، لیکن کیپٹن شکیل جانتا تھا کہ اس میں بھی عمران کی غرض پوشیدہ ہوگی۔ کافی اصرار کے باوجود عمران نہیں مانا۔ باقی ملکوں کے چیدہ جاسوسوں پر مشتمل ایک پارٹی ترتیب دی گئی اور میٹنگ ختم ہو گئی۔ جولیا آج بہت عرصے بعد خوش تھی، کیونکہ کافی عرصے بعد وہ آج ایک بار پھر ساحل سمندر پر تفریح کر رہی تھی۔ سیکرٹ سروس میں آنے کے بعد تفریح کے بہت کم مواقع پیش آئے تھے، کیونکہ کام ہی اتنا ہوتا تھا کہ تفریح کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ آج میٹنگ ختم ہو گئی تھی اور کل سب نے اپنے اپنے وطن واپس روانہ ہونا تھا۔ عمران کے منع کرنے کے باوجود جولیا صفدر کو لے کر ساحل سمندر کی طرف نکل آئی تھی۔ عمران نے اسے کہا تھا کہ وہ محتاط رہیں، کیونکہ ماکازونگا کے ایجنٹ یہاں ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچائیں، لیکن جولیا نہ مانی۔ آخر کار عمران کو ہار ماننی پڑی اور جولیا صفدر کو لے کر چلی گئی۔ عمران کیپٹن شکیل کے ساتھ اپنے ایک دوست کو ملنے چلا گیا۔ جولیا ساحل سمندر پر ہر فکر سے آزاد خوب اچھل کود کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد صفدر اور جولیا ٹہلتے ٹہلتے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ کافی دور نکل گئے۔ یہاں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ صفدر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور ارد گرد کا نظارہ کرنے لگا۔ جولیا ٹہلتے ٹہلتے اور آگے نکل گئی۔ صفدر اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ جولیا ایک چٹان کے پیچھے صفدر کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور صفدر جولیا کے متعلق سوچنے لگا، جو اپنا ملک چھوڑ کر اب اس کے ملک کے ایک اہم عہدے پر فائز تھی۔ صفدر کو اس کی دلیری اور ذہانت پر اعتماد تھا، حالانکہ وہ سوئس تھی لیکن اب اس کے ملک کی باشندہ تھی۔ اب صفدر کا وطن ہی اس کا وطن تھا اور اس کو اپنے نئے وطن سے اتنی ہی محبت تھی جس طرح صفدر کو۔ اس میں نہ پہلے کسی قسم کا شک تھا اور نہ اب ہے۔ سب اس کی حب الوطنی کے دل دادا تھے۔ ایکس2 کے ساتھیوں میں وہ قابل اعتماد ساتھی تھی۔ ابھی اس کی سوچ ہوا اور خیالات کی وادیوں میں سر پر دوڑ رہی تھی کہ ایک چیخ نے اسے چونکا دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو کچھ نہ سمجھا، لیکن اچانک دوسری چیخ بلند ہوئی۔ صفدر سمجھ گیا کہ یہ چیخیں جولیا کی ہیں۔ وہ تیزی سے اس ٹیلے کی طرف بھاگا۔ فاصلہ کافی تھا، لیکن صفدر نے انتہائی تیزی سے اسے عبور کر لیا۔ ٹیلے پر چڑھتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک عربی لباس پہنے ایک شخص
शख्स ने जो शक्ल से भी बदबू नजर आ रहा था जूलिया को पीछे से पकड़ रखा था और वो अपने कशाकशा साहिल के पास खड़ी एक लांच की तरफ उसे घसीट रहा था। जूलिया भरपूर जदोजहद कर रही थी लेकिन वो बुद्धू इंतहाई ताकतवर था। सफदर के करीब पहुंचते पहुंचते वो जूलिया को लांच में डालने में कामयाब हो गया। सफदर ने रिवॉल्वर निकालकर फायर कर दिया लेकिन शायद घबराहट और बौखलाहट में निशाना खता गया और लांच तेजी से समंदर में दौड़ पड़ी थी। सफदर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था लेकिन जल्द ही लांच पिस्तौल की रेंज से बाहर निकल गई। अब सफदर पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था लेकिन आसपास और कोई लॉन्च भी न थी। कुछ देर बाद लॉन्च नजरों से गायब हो गई और सफदर हाथ मलता रह गया। उसे अपनी बेबसी पर शदीद गुस्सा आ रहा था लेकिन उसके वहमो गुमान में भी न था कि माकाजुंगा के एजेंट इतनी दलेरी से जूलिया को ले उड़ेंगे। अब सफदर के पास सिवाय इमरान को रिपोर्ट देने के और कोई रास्ता न था। सफदर ने जैसे ही जूलिया की अगवा की खबर सुनाई इमरान बौखला गया। वो कैप्टन शकील और सफदर को लिए सीधा साहिल समंदर पर पहुंचा। वहाँ इधर उधर काफी तहकीकात की गई लेकिन इस पुरस्रार बुद्धू और लांच का कोई पता न चल सका। इमरान ने मकामी CID और पुलिस को इत्तला दी और तमाम न्यूयॉर्क की पुलिस में इस अगवा की खबर से तहलका मच गया क्योंकि मंदूबीन की हिफाजत उनके वकार का सवाल था। तमाम न्यूयॉर्क की नाकाबंदी कर ली गई। रेडियो से तमाम शहरियों को भी मुतल्ला कर दिया गया। जूलिया का हुलिया भी नशर किया गया कि अगर किसी भी शहरी को उसका पता हो तो फौरन पुलिस को इत्तला दे। लेकिन इतनी भरपूर तगोदो के बावजूद भी जूलिया का कोई पता न चल सका। रात को जब इमरान, सफदर और कैप्टन शकील मायूस और दिलगिरफ्ता वापस होटल पहुंचे तो काउंटर क्लर्क ने उन्हें एक लिफाफा दिया। ये आपके नाम है। काउंटर क्लर्क ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। इमरान ने लिफाफा लेकर हैरत से उसे देखा। वो लिफाफा दस्ती भेजा हुआ मालूम होता था। ये कौन दे गया है? इमरान ने सवाल किया। दोपहर को एक नौजवान शख्स दे गया था कि मिस्टर इमरान जब भी आए उन्हें पहुंचा दिया जाए। इमरान ने कमरे में जाकर लिफाफा खोला और उसमें मौजूद रुक्का पढ़ने लगा। मसखरे इमरान, तुम्हारी साथी जूलिया हमारे हेडक्वार्टर पहुंच गई है। हमने उसे बतौर यरगमाल बना रखा है ताकि तुम और तुम्हारे साथी हमारे खिलाफ कोई काम ना करें, वरना मिस जूलिया को कत्ल करके उसकी लाश तुम्हारे पास भेज दी जाएगी। ये कार्रवाई सिर्फ हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर की गई है, वरना माकाजुंगा का तुम जैसे मच्छर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। माकाजुंगा अजीम कुव्वत है। इमरान ने खत पढ़कर एक तवील सांस ली और फिर खत सफदर की तरफ बढ़ा दिया। शाम की फ्लाइट से वो तीनों वतन वापस जा रहे थे। सर रहमान ने बरकी घंटी का बटन जोर से दबाया। बाहर बरामदे में घंटी की आवाज सुनाई दी और फौरन एक बावर्दी चपरासी हाजिर हुआ। सुपरिंटेंडेंट फयाज को सलाम कह लो। थोड़ी देर बाद सुपरिंटेंडेंट फयाज कैप ठीक करता हुआ रहमान साहब के दफ्तर में पहुंच गया और जाकर सलाम किया। बैठो, रहमान साहब ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। फयाज चुपके से साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। इमरान आजकल क्या कर रहा है? मालूम नहीं जनाब, फयाज ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें उसकी रिहाइशगाह का पता है? सर रहमान ने गौर से फयाज को देखते हुए कहा। जी। और फयाज का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। वो अच्छी तरह जानता था कि सर रहमान को फयाज और इमरान के ताल्लुकात का बखूबी इल्म है। फिर रहमान साहब फयाज से इमरान की रिहाइशगाह के मुतालिक पूछ रहे थे। सर रहमान फयाज की हैरत को बांध गए। फौरन कहने लगे, मेरा मतलब ये है कि आजकल मिस्टर इमरान की रिहाइशगाह कहाँ है? वही अपने फ्लैट में जनाब। अच्छा तो देखो, मैं स्पेशल वारंट जारी कर रहा हूँ। तुम हर हालत में इमरान को गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। इमरान। फयाज का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया और उसे शदीद दचका लगा। हाँ हाँ, इमरान को। और क्या तुम्हारे बाप को? सर रहमान को गुस्सा आ गया और फयाज हैरत से होंठ काटता रह गया क्योंकि सर रहमान ने आज पहली बार एक गैर हाजिर बात मुंह से निकाली थी। आज तक उनके मुंह से इस किस्म का कोई कलमा नहीं सुना था। ये लो वारंट गिरफ्तारी और मुझे गिरफ्तारी के मुतालिक फौरन रिपोर्ट करो। उसकी गिरफ्तारी हर हालत में जरूरी है, सर रहमान ने वारंट देते हुए कहा। और फयाज वारंट लेकर हैरान और परेशान कमरे से बाहर निकल आया। चल लम्हे तो वो हैरानी के आलम में बरामदे में खड़ा वारंट को देखता रहा। फिर हैरत पर जोश आ गया। आज किस्मत ने उसे एक सुनहरी मौका दिया है। उसकी मुद्दत से ये ख्वाहिश थी कि वो इमरान को किसी तरह नीचा दिखाए। ये लम्हा उसे उस कागज के पुर्जे ने बख्श दिया था। वो फौरन अपने कमरे में आया। उसने वारंट को अच्छी तरह पढ़ा था। वारंट पर सेक्रेटरी वजारत दिफा के दस्तखत थे। अब इमरान किसी तरह भी नहीं बच सकता था। उसने इमरान को फ्लैट पर टेलीफोन किया। वहाँ से उसे सुलेमान ने कहा कि साहब बाहर चले गए हैं। उसने सोचा कि आजकल इमरान टिप टॉप नाइट क्लब में ज्यादा देखा जाता है। चुनांचा उसने चंद सिपाहियों को साथ लिया और टिप टॉप नाइट क्लब रवाना हो गया।
टिप टॉप नाइट क्लब के वसी और इस हॉल में इमरान कैप्टन शकील और सफदर के साथ एक मेज पर बैठा क़हक़ह लगा रहा था। उसकी अहमकाना हरकतें तमाम हॉल को हंसने पर मजबूर कर रही थी। उस वक्त वो हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज भी बना हुआ था। कैप्टन शकील और सफदर के चेहरे नदामत से सुर्ख पड़ जाते थे। अचानक फयाज 4 सिपाहियों को साथ लेते हुए हॉल में दाखिल हुआ। उसने एक लम्हे के लिए चारों तरफ देखा। उसे कोने में इमरान मेज पर अपने साथियों समेत बैठा नजर आया। इमरान को देखकर फयाज की आंखों में चमक आ गई और फिर वो तेजी से इमरान की तरफ बढ़ा। इमरान ने जैसे ही फयाज को 4 सिपाहियों समेत हॉल में दाखिल होते देखा तो वो खटक गया कि आज जरूर कोई खास बात है। और जब वो इमरान की तरफ बढ़ने लगा तो इमरान बुलंद आवाज में जलतू जलालतू का विर्द करने लगा। सब लोग बेतहाशा हंस रहे थे, लेकिन फयाज के चेहरे पर करख्तगी के आसार उभर आए। वो इमरान के पास आकर खड़ा हो गया। इमरान बाकायदा ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। कहो सुपर मिजाज तो अच्छे हैं। इमरान, तुमने आज तक मेरा मजाक उड़ाया है, लेकिन मैं आज तुमसे सब बदले लूंगा। फयाज ने जेब में हाथ डालते हुए कहा, क्या मतलब? आज तो बहुत नाराज नजर आते हो। इमरान ने फयाज को आंख मारते हुए कहा, इमरान, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। ये वारंट है। क्यों मजाक करते हो यार? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मेरे दोस्त? लेकिन फयाज ने सुनी अनसुनी करते हुए साथ आए हुए सिपाहियों से मुखातिब होकर कहा, इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही इमरान की तरफ बढ़े। अब इमरान के चेहरे पर संजीदगी छाने लगी। उसने गौर से फयाज की तरफ देखा और कहा, अच्छा तो तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो? तुम्हें किसने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है? इमरान ने सिपाही को हाथ से रोकते हुए कहा, सर रहमान ने। फयाज ने संजीदगी से कहा, वालिद साहिब ने। आखिर क्यों? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो तुम्हें हर हालत में गिरफ्तार करूंगा। तुमने आज तक मुझे बहुत सताया है, आज मेरी बारी है। यार सुपर, कुछ पुरानी दोस्ती का ही लिहाज कर लो, मुझे माफ कर दो। इमरान ने दफतन लजाजत आमेज लहजे में कहा। उनकी इस बातचीत की बनक हॉल में बैठे हुए लोगों के कानों में भी पड़ी थी। वो सब भी हैरान थे। देखो इमरान, मेरा वक्त जाया ना करो, मैं तुम्हें किसी हालत में भी नहीं छोड़ सकता। फयाज ने अकड़ते हुए कहा। सफदर और शकील साहब चुपचाप बैठे सूरत हाल का अंदाजा कर रहे थे। फयाज ने सिपाही की तरफ देखते हुए कहा, तुम इसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाते? और सिपाही आगे बढ़ा। रुक जाओ, देखो फयाज, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम चले जाओ, वरना बाद में जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर होगी। मैं हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, मगर तुम्हें आज जरूर गिरफ्तार करूंगा। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, मुझे चाय पीने दो और मैंने एक जरूरी टेलीफोन करना है। इतना तो कम से कम तुम रियायत कर ही सकते हो। इमरान ने अजजाना लहजे में कहा, अच्छा तुम्हारी खातिर मैं चंद मिनट और भी रुक सकता हूँ। देखो, अगर तुमने मेरी जात के साथ किसी किस्म का धोखा किया तो मैं बहुत ही बुरी तरह पेश आऊंगा। फयाज ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो बड़े फाखिराना अंदाज से हॉल पर नजरें दौड़ा रहा था। इमरान ने वेटर को चाय लाने का ऑर्डर दिया और खुद टेबल पर रखे हुए टेलीफोन पर नंबर डायल करना। हेलो, मैं इमरान बोल रहा हूँ। जी हाँ, मेजर रफीकी मिला दें। सलाम वालेकुम मेजर साहब, सब ठीक है। कैप्टन शमीम, कैप्टन सरवर और मिलिट्री पुलिस के चारों आदमियों के नाम पर फयाज चौंका। कुछ नहीं, एक और काम है। ये कहकर वो चाय पीने में मशगूल हो गया। अब उसके चेहरे पर संजीदगी थी। उसने फयाज के हाथ से वारंट लेकर देखा। उस पे सेक्रेटरी वजारत दिफा सर सुल्तान के दस्तखत थे। उसने एक जोर की हूं की और फिर वो इत्मीनान से बैठ गया। चंद मिनट बाद हॉल में कैप्टन और 4 मिलिट्री पुलिस के आदमी दाखिल हुए। तमाम हॉल उन्हें देखकर चौंक गया, लेकिन वो सीधे इमरान के पास आते ही बढ़े और फिर इमरान के पास आते ही उन सब की ईड़ियां बच गई और सलूट करने के बाद वो अटेंशन पोजीशन में खड़े हो गए। देखो कैप्टन शमीम, जरा फयाज साहब को बताओ कि मैं कौन हूँ। ये मेरी गिरफ्तारी के वारंट लेकर आए हैं। कैप्टन शकील ने आगे बढ़कर फयाज के हाथ से वारंट ले लिया, उसे पढ़ा और फिर फयाज को देते हुए कहा, देखिए मिस्टर फयाज, आप तशरीफ ले जाएं। आप सदर मुमलिकत के जारी करदा वारंट पर भी मिस्टर इमरान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये तो वजारत दाखिला का जारी करदा है। बस इसी से आप उनकी पोजीशन का अंदाजा कर लें, और अगर आपने इस सिलसिले में कोई बात की तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा। फयाज बेबसी से होंठ काटता हुआ वापस मुड़ गया। और कोई हुक्म जनाब? कैप्टन शमीम ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं, बस जाओ, इमरान ने शाने बेनियाजी से कहा। और कैप्टन शमीम और उसके साथी इमरान को सलूट करने के बाद वापस मुड़ गए। हॉल में बैठे हुए लोग इंतहाई हैरान थे और वो लोग सरगोशियों में इमरान की पोजीशन का अंदाजा
اندازہ لगा رہے تھے۔ عمران نے بل ادا کیا اور پھر صفدر اور شکیل سمیت ہال سے باہر نکل گیا۔ عمران صوفے پر بیٹا اونگ رہا تھا، اسے اونگنا ہی کہیں گے کیونکہ عمران ٹانگے صوفے پر رکھڑے اکڑو حالت میں بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ توڑی کے نیچے دیے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی اور چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور عمران صوفے سے اچھل کر فرش پر آ گرا، لیکن پھر فوراً کپڑے جھاڑتا زیر لب کچھ بڑبڑاتا ہوا ریسیور اٹھا کر بولا، ہیلو، میں 16 چند رولا چند شکرقند والا بول رہا ہوں، سوری رانگ نمبر۔ آواز آئی اور عمران نے ریسیور کو آنکھ مارتے ہوئے واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ حماقتیں عمران کی فطرت بن چکی تھی، وہ ایسے وقت میں بھی حماقتوں سے باز نہ آتا جبکہ ان کا سرے سے کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر وہ جان بوجھ کے نیچے جا گرا اور پھر غلط پتہ بتا کر ٹیلی فون کرنے والے کو تنگ کیا۔ اس کی بلا سے چاہے کال کتنی ہی اہم کیوں نہ ہوتی، عمران اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ گھنٹی ایک بار پھر زور سے بجی اور عمران نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، عمران MSc DSc آکسن بات کر رہا ہوں بھائی جان، میں سوریا بول رہی ہوں۔ ادھر سے سوریا کی آواز ابری، خدا کرے سدا بولتی رہو، جگ جگ جیو۔ عمران نے بڑی تیزی سے بوڑھیوں کی طرح آواز کو جھکا کر کہا، پلیز بھائی جان تنگ نہ کیجیے، ضروری بات ہے۔ سوریا، کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ فون پر کیسے تنگ ہو سکتی ہو؟ فون نہ ہوا شکنجا ہو گیا۔ بھائی جان پلیز ایک بات تو سنو، بولو۔ بھائی جان 2-3 روز سے ابو جان عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، سخت الجھن میں ہوں۔ حرکتیں؟ کیا مطلب؟ کیا بندر کی طرح ناچتے ہیں؟ بھائی جان مجھے شک پڑتا ہے کہ ابو جان اصلی بالکل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اب والد صاحب بھی بنسپتی ہونے لگے؟ سوریا تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنے والد کے متعلق تم ایسا کہہ رہی ہو۔ سنیے تو صحیح، آپ کو معلوم ہے کہ ابو جان سوتے وقت ہمیشہ 1 گلاس دودھ بغیر میٹھا ڈالے پیتے ہیں، لیکن 2-3 دن سے ابو جان ایسا نہیں کر رہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل مامو جان آئے تو ابو جان اسے پہچان نہ سکے۔ پگلی، یہ سب تیرا وہم ہے، ابو جان آج کل مصروف ہوں گے، اسی لیے دماغ ذرا پریشان رہتا ہوگا، اور پریشانی میں کبھی کبھی انسان کی عادتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ عمران نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا، لیکن عمران کے چہرے پر سلوٹیں نمودار ہونے لگی۔ اس نے سوچا سوریا ٹھیک کہتی ہے، مجھے وہاں جا کر چیک کرنا چاہیے، کیونکہ ابو جان کے دشمن ہزار ہیں اور آج کل ماکازونگا نے ملک میں تہلکہ برپا کیا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چکر ماکازونگا نے ہی چلایا ہو۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی سے کپڑے پہنے اور اپنی کار کوٹھی کی طرف دوڑا دی۔ دروازے پر کڑے پٹھان چوکیدار نے اسے دیکھا تو بولا، خیر چھوٹے صاحب، آج ادھر کیسا راستہ بھول پڑے؟ خان بس ویسے ہی دل چاہا، سوچا ذرا اماں جی سے بھی ملاقات ہو جائے گی، تم سنو خوش ہو؟ جی آپ کی دعا سے ہم خیریت سے ہیں۔ پٹھان نے نسوار سے لپے ہوئے کالے دانت نکالے اور عمران آنکھیں بند کرتا ہوا کار آگے نکال کر لے گیا۔ کار کڑی کر کے جب وہ آگے بڑھا تو سوریا اسے گیلری ہی میں مل گئی۔ ہیلو بھائی جان، نہ سلام نہ دعا، ملتے ہی ہیلو، یہ کیا انگریزیت ہے؟ اماں بھی کہاں ہے؟ شکر ہے آج آپ کو اماں بھی کا خیال تو آیا، اندر ہے؟ اور عمران سیدھا اندر چلا گیا۔ اندر اماں بھی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، اور یہ تمام دعا عمران ہی کے بارے میں تھی۔ دعا مانگتے مانگتے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئیں۔ ماں کی محبت دیکھ کر عمران کا دل بھر آیا اور وہ وہی ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں نے عمران کو دیکھتے ہی عمران کہہ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ عمران کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ صحراؤں میں بھٹکتے بھٹکتے کسی نخلستان میں پہنچ گیا ہو، جہاں ٹھنڈی چھاؤں ہے، محبت اور شفقت کا میٹھا چشمہ بہہ رہا ہے۔ عمران کی والدہ عمران کو سینے سے لگائے رو رہی تھی اور عمران چپ چاپ آنکھیں بند کر کے ان کے سینے سے لگا ہوا تھا، جیسے چھوٹا سا بچہ جب والدہ کے دل کا بخار اتر گیا تو اب انہیں عمران پر غصہ آ گیا۔ انہوں نے پاس پڑی ہوئی چپل اٹھائی اور پھر عمران کے سر پر چپلیں تڑا تڑ بجنی شروع ہو گئیں، لیکن عمران ایسے ہی بیٹھا تھا جیسے چپلیں نہ ہوں، پھول برس رہے ہوں۔ نہ مراد، تو مجھے مار کر ہی چھوڑے گا؟ مجھ پر کسی کو رحم نہیں آتا، نہ تجھے نہ تیرے باپ کو، تم دونوں ہی میری جان کے دشمن ہو۔ جب ان کے ہاتھ تک گئے تو ایک بار پھر انہوں نے عمران کو لپٹا لیا۔ آخر سوریا بول پڑی، اماں اب چھوڑیے بھی بھائی جان سے، ہمیں بھی کوئی بات کر لینے دو۔ اور اماں بھی نے آنسو پوچھتے ہوئے عمران کو علیحدہ کر دیا۔ عمران ابو جان سے ملنے کا بہانہ کر کے اٹھ گیا۔ سوریا نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سیدھا والد صاحب کے کمرے میں گھس گیا۔ سر رحمان ایک آرام دہ کرسی پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے تھے۔ عمران کے اندر آنے سے وہ چونک پڑے۔ عمران سیدھا جا کر ان کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے والد چند لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر انہوں نے پوچھا، کیسے آئے ہو؟ بس آپ کو سلام کرنے حاضر ہوا تھا۔ آپ نے میری گرفتاری کے وارنٹ کیوں جاری کیے تھے؟ اس کی آخر کیا وجہ تھی؟ اوپر سے احکام آئے تھے لیکن فیاض نے تمہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ابا جان آپ کو معلوم ہے کہ میں فیاض کے بس کا روگ نہیں، پھر آپ نے خواہ مخواہ فیاض کو بیچ کر اس کی بے عزتی کرائی۔ تم نے فیاض کی بے عزتی کی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے فیاض کی نہیں
बल्कि बराह रास्त मेरी बेइज्जती की है। सर रहमान को गुस्सा आ गया, और आपने भी तो मेरे वारंट जारी करके मेरी बेइज्जती की थी। इमरान ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया, शट अप, निकल जाओ, मैं देख लूंगा तुम्हें। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आप अभी देख लें। मैं कहता हूँ निकल जाओ, तुम नाखलफ औलाद हो। अच्छा होता अगर तुम पैदा ही ना होते। अगर मैं पैदा ना होता तो आप वारंट किसके जारी करते? और सर रहमान को इतना शदीद गुस्सा आ गया कि वो कुछ बोल ना सके। अब्बा जान, सर जुल्फिकार आपको पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा, तुम्हें कहाँ मिले थे? बार में बैठे मेरे साथ शराब पी रहे थे। और ये कहकर इमरान कमरे से बाहर निकलता चला गया। सुरैया बाहर दरवाजे से लगी उनकी बातें सुन रही थी। सुरैया की बच्ची, ये तुम्हें क्या बुरी आदत है? चुप चुप कर बातें सुनना अखलाकी जुर्म है। आपने अब्बा जान के मुतालिक क्या सोचा? सुरैया उनकी बात काट कर बोली, अब्बा जान ही हैं, सोचना क्या? और ये कहते हुए इमरान पोर्टिको की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार कोठी से बाहर निकल गई। इमरान की कार तेजी से सर सुल्तान की कोठी की तरफ भाग रही थी। सुबह उसे पता चला कि सर सुल्तान किसी अहम मिशन पर मुल्क से बाहर गए हैं। अब वो यकीनन वापस आ चुके होंगे। इमरान ने उनसे अपने वारंट के मुतालिक पूछना था। चंद लम्हों बाद उसकी कार सर सुल्तान के पोर्टिको में खड़ी थी। अपने आने की इतला करा के ड्राइंग रूम में बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद सर सुल्तान अंदर आ गए। कहो इमरान, कैसे आए हो? आपसे लड़ने? मुझसे लड़ने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? जी हाँ, खोपड़ी में है। आज ही मैंने आईने में देखा था। इमरान, कम से कम कभी तो संजीदा भी हो जाया करो। पहले तो ये बताइए कि मैंने आपका क्या कसूर किया था कि आपने मेरा स्पेशल वारंट निकलवा दिया? मैंने कोई वारंट जारी नहीं किया। सर सुल्तान हैरान होते हुए बोले, कमाल है, वारंट पर आपके दस्तखत थे। वालिद साहब ने फयाज को देखकर मुझे हर हालत में गिरफ्तार कराना चाहा। हैरत है, मुझे तो इल्म ही नहीं। मैं तो कल शाम से ही बाहर गया हुआ था और अभी आया हूँ। हाँ, अच्छा चले, आप वालिद साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दें। सर रहमान के वारंट गिरफ्तारी क्यों? मैं जो कह रहा हूँ आप वो करें। तुम्हारा दिमाग खराब है? आखिर कोई वजह तो हो। क्या मेरा कहना कोई वजह नहीं? मुझे बतलाओ तो सही क्या बात है। मिस्टर इमरान, आखिर वो तुम्हारे वालिद हैं। मैं सब कुछ आपको बाद में बतला दूंगा। अब आप फौरन उनकी गिरफ्तारी के वारंट इशू करें। अगर तुम कुछ नहीं बताते तो मैं वारंट इशू नहीं कर सकता। सर सुल्तान ने जिद करते हुए कहा, देखिए, आपको अच्छी तरह इल्म है कि मैं ये आर्डर्स इशू करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपके हर मामले में इज्जत देना पसंद करता हूँ। इसीलिए आप मेहरबानी करके मेरी बात माने और वारंट इशू कर दें। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। सर सुल्तान ने हथियार डालते हुए कहा, मैं हर किस्म की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। आप ये वारंट जारी करके मेरे फ्लैट में पहुंचा दें। टाटा। और इमरान बगैर हाथ मिलाए तेजी से कमरे से निकल गया और सर सुल्तान शशदर होकर बैठे रहे। आज मकाजूंगा के सिलसिले की एक अहम मीटिंग थी, जिसमें वजीर दाखिला सर सुल्तान, सर रहमान, पुलिस के आला अफसरान के साथ एक्स2 भी मुंह पर नकाब डाले मौजूद था। मीटिंग हॉल की निगरानी और हिफाजत के खास इंतजाम किए गए थे। चारों तरफ मिलिट्री पुलिस का पहरा था और हॉल में भी चारों तरफ मिलिट्री पुलिस के सिपाही हाथों में रिवॉल्वर लिए चौकन्ने खड़े थे। सर सुल्तान ने मकाजूंगा की कार्रवाइयों पर मुश्तमिल रिपोर्ट पढ़ी। अब एक्स2 से कहा कि वो न्यूयॉर्क में बैनुल अक़वामी मीटिंग की कार्रवाई सुनाए। एक्स2 ने गुर्राई हुई आवाज में कहा कि मैं कार्रवाई पेश करने से पहले एक और बात का तस्फिया करना चाहता हूँ। ये कहकर एक्स2 ने इशारा किया और मिलिट्री पुलिस के सिपाहियों ने सर रहमान को रिवॉल्वरों के घेरे में ले लिया। सर रहमान घबरा गए। वजीर दाखिला और दीगर आला अफसरान इंतहाई हैरान हो गए। वजीर दाखिला ने एक्स2 से कहा, ये क्या हरकत है? आपने सर रहमान की तौहीन की है, आप जवाबदेह होंगे। एक्स2 ने उसी लहजे में कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये सर रहमान नहीं बल्कि मकाजूंगा के खास एजेंट हैं। मकाजूंगा के एजेंट? तमाम मेंबरान के मुंह से इकट्ठे निकला। मिस्टर एक्स2, तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। मुझे 35 साल हो गए इस हुकूमत की खिदमत करते हुए और मेरी वफादारी पर आज तक कोई हर्फ नहीं आया, और आज आपने संगीन इल्जाम लगाया है मुझ पर। मैं तो इस तौहीन का बदला अदालत में लूंगा। सर रहमान बौखलाए बोल रहे थे। एक्स2 ने कोई जवाब ना दिया। उसने एक सिपाही को मखसूस इशारा किया और वो अमोनिया की बोतल ले आया। सर रहमान का जबरदस्ती मुंह धुलवाया गया तो प्लास्टिक मेकअप की तह के नीचे एक अजनबी चेहरा बरामद हो गया। अब तो वजीर दाखिला भी चौंक पड़े, फिर फौरन बोले, असली सर रहमान कहाँ है? मैंने उनकी बरामदगी के लिए अपने एजेंट भेजे हैं। उम्मीद है अभी कहीं न कहीं से इतला आ जाएगी। और एक्स2 के इशारे से सिपाही नकली सर रहमान को पूछगछ के लिए बाहर ले
गए। आपको इनके नकली होने का पता कैसे चला? आईजी पुलिस ने सवाल किया। मेरे खास एजेंट अली इमरान ने, जो सर रहमान के साहबजादे भी हैं, मुझे इतला भेजी है, जिस पर मजीद तहकीकात करने से उनके नकली होने के सबूत पाए तकमील तक पहुंच गए और नतीजा आपके सामने है। X2 ने कहा। इतने में मिलिट्री पुलिस का एक आदमी X2 के करीब आया और उसने एक पर्चा उसके हवाले कर दिया। X2 ने पर्चा खोलकर पढ़ा और उसे पढ़कर जेब में डाल दिया। हजरत, असली सर रहमान का पता चल गया है, वो खतरे जख्मी हैं, इसीलिए उन्हें मिलिट्री पुलिस के स्पेशल वार्ड में पहुंचा दिया गया है। अब मैं आपको बैनुल-अक़वामी मीटिंग की कार्रवाई से आगाह करता हूँ। X2 ने तफसील से बताया। सब मेंबरान ने माकाजुंगा के हेडक्वार्टर का पता चल जाने पर खुशी का इजहार किया। X2 ने उन्हें बताया कि वो अली इमरान की सरकर्दगी में माकाजुंगा की सरकूबी के लिए अपने एजेंटों की एक टीम रवाना कर रहे हैं। इस तजवीज से सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर इत्तेफाक किया और मीटिंग बर्खास्त हो गई। सब ने जेपों से उतरकर सामने हद तक फैले हुए भयानक जंगल को देखा और उन सबको पुरेरी सी आ गई, खौफ की वजह से नहीं बल्कि आइंदा आने वाले वाक़यात का तस्वर करके। यहाँ से उनकी जिंदगी का भयानक बाब शुरू होना था। न जाने पुरस्कार और खौफनाक जंगल में किस तरह के वाक़यात पेश आते और आया वो सही सलामत वापस इस जंगल से निकल भी सकेंगे या नहीं। एक इमरान था जो हर खतरे से बेनियाज सामान उतरवा रहा था। जोसेफ की तो हालत ही अजीब थी। उसके चेहरे पर खुशियां फूट रही थीं, जैसे कई सालों बाद कोई शख्स अपने वतन वापस आया हो। सही मानों में जोसेफ शहर की जिंदगी से उकता गया था। उसका कभी कभी दिल चाहता था कि वो वापस जंगल की आजाद फजाओं में चला जाए, जहाँ नई तहजीब की बेगैरती और तकल्लुफ व तसन्नो से पाक एक आजाद माहौल होता है। लेकिन वो इमरान की वजह से ना कर सकता था, क्योंकि इमरान से उसका लगाव उसकी हर ख्वाहिश पर काबू पा लेता था। इमरान से उसे एक तरह का इश्क था और ये हकीकत भी थी। इमरान उसकी जिंदगी का जुज़ू बन चुका था। ग्रेट बॉस इमरान की मुनफरिद खसूसियात का गर्विदा था। अब किस्मत ने उसे चंद दिन के लिए दोबारा मौका दिया था कि वो जंगल में सांस ले सके। इसके लिए उसके चेहरे पर खुशियां फूटी पड़ रही थी। ब्लैक जीरो से तकरीबन 4 मील आगे घने जंगल में मौजूद था। वो कंपस के जरिए सिमत का अंदाजा कर रहा था ताकि टीम की मुनासिब रहनुमाई कर सके। ब्लैक जीरो का काम दरअसल सबसे कठिन था, क्योंकि उसे जंगल में अकेले ही सब आफतों का मुकाबला करना था। लेकिन इमरान ने उसकी इस तरह से ट्रेनिंग की थी कि वो इमरान की तरह तकरीबन नाकाबिले तस्खीर बन चुका था। उसमें उसकी आला सलाहियतों और हाजिर दिमागी का भी दखल था। सारी टीम शिकारियों के बेस में थी। टीम में इमरान, शकील, सफदर, तनवीर, नाशाद और जोसेफ थे। जूलिया की अगवा की वजह से वो सब अफसरदा थे। सबको महूम सी उम्मीद थी कि जूलिया वापसी में उनके साथ बहरहाल होगी। बहरहाल जूलिया की कमी उन्हें बुरी तरह खल रही थी। उन सब ने अपने अपने हिस्से का सामान उठाया हुआ था। फालतू सामान जोसेफ के कांधों पर था, जिसे वो आसानी से उठाए हुए था। उन सब के पास आला किस्म की मशीन गने थी, एक जदीद किस्म के रिवॉल्वर जिनसे गोली के बजाय छोटे छोटे रॉकेट निकलते थे, और एक रॉकेट एक छोटी तोप के गोलों जितनी तबाही मचाता था। दूर मार राइफलें उनके कंधों पर लटकी थी। हैंड ग्रेनेड भी काफी तादाद में मौजूद थे। जोसेफ के पास काफी मिकदार में डायनामाइट सेट भी था, चुनांचे वो जदीद असलहे से पूरी तरह लैस थे। वो सब इमरान की सरकर्दगी में घने जंगल में एक छोटी सी पगडंडी पर चले जा रहे थे। तनवीर बेचारा इंतहाई अफसरदा था और इमरान उसे बार बार छेड़ देता। तनवीर, न जाने जूलिया किस हाल में होगी, न जाने बेचारी जिंदा भी है या नहीं। और ये कहते कहते इमरान के चेहरे पर गम की लहरें छा गई। तनवीर अब तक खामोशी से सुनता चला आ रहा था, लेकिन आखिर कब तक? इस बात पर पट पड़ा। मरे उसके दुश्मन, वो क्यों मरे? मुझे पता है तुमने जानबूझकर उसे सफदर के साथ भेजा था। तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे और तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन याद रखना, अगर हेडक्वार्टर में जूलिया ना मिली तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाय हाय, पूरी दादी अम्मा की तरह बोल रहे हो। जूलिया के इश्क ने तुम्हें भी औरत बना दिया है, यानी मन तो शुदम तो मनशुदी वाला चक्कर है। सफदर और नाशाद इमरान की इस बात पर हंस पड़े, लेकिन तनवीर का चेहरा बिगड़ते देखकर वो चुप हो गए। तनवीर को असहद गुस्सा आ गया। उसने सामान फेंक दिया और खुद इमरान पर झपट पड़ा, लेकिन इससे पेशतर के वो इमरान तक पहुंचता, जोसेफ ने झपट कर उसका बाजू पकड़ लिया। मिस्टर, मास्टर पर झपटने से पहले मुझसे तो दो दो हाथ कर लो। आओ जल्दी आओ। और तनवीर ने गुस्से में एक मुक्का जोसेफ को मार दिया। अब तो जोसेफ को भी गुस्सा आ गया और जट सामान फेंक कर एक जोरदार लिफ्ट हुक तनवीर के मुंह पर मारा और तनवीर 2 फुट चलकर जमीन पर जा गिरा। उसका चेहरा ज़रब की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया था। इमरान हाय हाय करता रह गया, लेकिन तनवीर को मुक्का पड़ चुका था। अब इमरान ने जोसेफ को मना किया और तनवीर को बड़ी मुश्किल से सफदर और कैप्टन शकील ने संभाला। अब वो एक बार फिर अपने सफर पर रवाना हुए। दोपहर को जंगल के एक साफ खित्ते में उन्होंने कैंप लगाया ताकि कुछ ताज़ा दम होकर वो आगे जाएं। सफदर
बंदूक लेकर शिकार पर निकल गया। जोसेफ और तनवीर अब तक एक दूसरे को टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सफदर एक हिरन मार कर ले आया और वो लोग खाना पकाने की तैयारियों में मसरूफ हुए। कैप्टन शकील बंदूक हाथ में लिए टहलता हुआ जंगल में काफी दूर निकल गया। ये पुरस्कार जंगल अपने अंदर काफी रंगीनियां लिए हुए था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और फिर परिंदों और जानवरों का मुसलसल शोर उसके कानों को भला महसूस हो रहा था। काफी दूर टहलने के बाद वो वापस कैंप की तरफ मुड़ गया। अभी वो कैंप से 200 गज दूर था कि उसे अपनी पुश्त पर जोरदार धमाकों और दरख्त टूटने की आवाजें आईं और जमीन हिलने लगी। वो फौरन पीछे पलटा तो उसे महसूस हुआ कि भारी भरकम जानवरों का एक ग्रोह भागा चला आ रहा था। वो समझ गया कि ये देवपेकर हाथियों का गोल होगा। खेमे में बैठे हुए बाकी साथी भी हड़बड़ाकर बाहर निकल आए थे। कैप्टन शकील ने उन्हें फौरन खेमों से जरूरी सामान निकालकर दूर दूर दरख्तों पर चढ़ जाने का हुक्म दिया, लेकिन घबराहट में वो कुछ भी ना कर सके। जब बात उनकी समझ में आ गई तो इतनी देर में हाथियों का एक ग्रोह तेजी से उनकी तरफ भागता हुआ नजर आया। उन देवों के सामने जो चीज भी आती खसो खाशाक की तरह बिखरती चली गई। अब भागने का वक्त ना था, लेकिन कैप्टन शकील अपने साथियों से 2 गज दूर था, इसीलिए पहले जद में वही आता, लेकिन वो संभल कर खड़ा हो गया। उसने अपनी राइफल उठाई, निशाना लिया और सबसे आगे आने वाले हाथी के माथे पर गोली चला दी और भागते भागते लड़खड़ा कर गिरा, लेकिन वो फौरन उठ खड़ा हुआ। अब बाकियों की रफ्तार सुस्त हो गई। उन्हें मालूम हो गया था कि सामने उनके दुश्मन है और वो फितरी चालाकी से एक दायरा बनाकर भागने लगे। उन सब के आगे वही हाथी था जिसके माथे पर गोली लगी थी। उसके भागने के तर्ज से पता चलता था कि गोली कारगर नहीं लगी। इमरान ने कैप्टन शकील को जबरदस्त खतरे में देखा तो उसने उसे फौरन पीछे भागने को कहा। उसके दूसरे साथी इतनी देर में नजदीक के दरख्तों पर चढ़ चुके थे, लेकिन कैप्टन शकील ने एक कदम भी पीछे नहीं उठाया और वो तनकर खड़ा हो गया। उसे मालूम था कि अगर हाथियों के सरदार को किसी तरह खत्म कर दिया जाए तो ये ग्रोह वापस भाग जाएगा। चुनांचा उसने राइफल उठाकर एक और फायर किया, लेकिन राइफल पुश होकर रह गई। शायद उसमें कोई खराबी हो गई थी। इतने में बाकी हाथी बिल्कुल नजदीक आ गए थे। अब मौत कैप्टन शकील के बिल्कुल सामने थी। वो एक लम्हे के लिए झिझका और फिर उसने राइफल को नाल से पकड़कर सामने कर लिया। अब वो हाथियों से दस्त बदस्त जंग करने के लिए तैयार था। इमरान इतनी देर में भागता कैप्टन शकील के पास आ रहा था, लेकिन इमरान के पास पहुंचने से पहले हाथियों के सरदार ने कैप्टन शकील पर हमला कर दिया। इमरान ने सरदार के पीछे आने वाले हाथियों पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। जबरदस्त धमाका हुआ और हाथियों ने बौखलाकर अपना रुख फेर दिया, लेकिन सरदार हाथी इस धमाके से ना घबराया। शायद वो जोशे इंतकाम से पागल हो रहा था। उसने जैसे ही शकील पर हमला किया, शकील ने राइफल का बट घुमाकर उसकी सूंड पर मार दिया और खुद चलकर एक तरफ हट गया। हाथी अपने जोर में आगे चला गया। राइफल का बट तो जरूर टूट गया, लेकिन हाथी की सूंड भी बुरी तरह जख्मी हो गई। अब कैप्टन शकील बिल्कुल तन्हा था। उसके हाथ में सिर्फ राइफल की नाल थी और हाथी जख्मी होकर और भी गजबनाक हो गया। अब वो फिर पलटकर हमला कर रहा था। इमरान ने उसे पलटता देखकर उसकी राइफल से गोलियों की बूछाड़ कर दी, लेकिन वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते भी शकील के करीब पहुंच चुका था। अगर अब भी कैप्टन शकील उसकी जद में आ जाता तो कैप्टन शकील का हाथी के पाँव में पिस जाना यकीनी था, लेकिन कैप्टन शकील ने उछलकर राइफल की नाल उसकी आंख में घुसेड़ दी और हाथी चीखता हुआ एक तरफ भागा, लेकिन वो चंद गन के फासले पर लड़खड़ा कर गिरा। 2-3 बार तड़पा और फिर ठंडा हो गया, लेकिन कैप्टन शकील की बहादुरी देखकर इमरान के चेहरे पर भी तहसीन के तासुरात छा गए। कैप्टन शकील की बेमिसल जुर्रत और बहादुरी से सारी टीम की जानें बच गई थी। जोसेफ भी कैप्टन शकील की बहादुरी का पूरी तरह मद्दा हो गया था। इमरान के बाद ये दूसरा आदमी था जिससे जोसेफ मुतासिर हुए बगैर ना रह सका था। सारी टीम अपना अपना सामान उठाए एक बार फिर अपने सफर पर रवाना हो चुकी थी। इमरान रात को ही ब्लैक जीरो से आइंदा रास्ते की तमाम पोजीशन ले चुका था। चनांचा अब वो आसानी से उस रास्ते पर जा रहे थे। 2 दिन तक सफर के दौरान उन्हें कोई खास वाकया पेश नहीं आया, लेकिन 2 दिन के सफर के बाद उन्हें मालूम हुआ कि वो तो रास्ता भूल चुके हैं, क्योंकि रात ही ब्लैक जीरो ने इमरान को बताया था कि कंपास की 1 डिग्री गलती से अब वो अपनी मंजिल मकसूद से काफी दूर चले गए थे। ब्लैक जीरो की ये गलती एक भयानक गलती थी, क्योंकि उस पुरस्रार जंगल में रास्ता भूल जाने का मतलब सिवाय तबाही के और ना था। लेकिन ब्लैक जीरो भी आखिर इंसान था। अब गलती हो चुकी थी। इमरान ने ब्लैक जीरो को दोबारा सिमत मापने को कहा और उसकी तरमीम शुदा सिमत बताने पर वो पूरी टीम लेकर उस तरफ चल पड़ा। इमरान सबसे पीछे पीछे सफदर से बातें करता हुआ आ रहा था। अचानक उसे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ और पेशाब करने के बहाने एक झाड़ी की तरफ चला गया। ब्लैक जीरो ने उसे बताया कि वो भूमि कबीले की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। इमरान भूमि का लफ्ज सुनते ही तशवीश में पड़ गया, क्योंकि अफ्रीका के जंगलों में भूमि सबसे ज्यादा वहशी
وحشی اور آدم خور قبیلہ تھا۔ آج تک اس قبیلے سے بہت ہی کم افراد اپنی جانیں بچا سکے تھے۔ عمران نے بلیک زیرو کو کہا کہ وہ کنی کاٹ کر ان کے قافلے کے پیچھے چلا جائے تاکہ اگر ان کو کچھ ہو جائے تو بلیک زیرو بر وقت ان کی مدد کر سکے، اور خود اس نے ٹیم کو سارے واقعات بتا کر ہوشیار رہنے کو کہا کیونکہ اس قبیلے سے نپٹنا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ بہرحال تن بتقدیر اب وہ آگے بڑھے جا رہے تھے۔ عمران نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر ہرگز فائر نہ کریں کیونکہ اس سے حالات اور بگڑ سکتے ہیں۔ عمران نے کچھ سوچ کر اپنے کپڑے اتارے اور ایک نکر پہنی اور جس پر مختلف رنگ مل لیے، سر پر ایک جاڑی باندھ دی۔ اب وہ کسی وحشی قبیلے کا ایک جادوگر نظر آ رہا تھا۔ سب لوگ اس کی اس حیت کو دیکھ کر ہنس رہے تھے اور عمران طرح طرح کے منہ بنا کر ان کو اور بھی ہنسا رہا۔ اچانک دور سے ڈھول بجنے کی آواز آئی اور عمران سمجھ گیا کہ کسی قبیلے کے پہرے دار نے انہیں دیکھ لیا ہے اور اب وہ اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے رہے تھے۔ پھر جنگل میں دور دور تک ڈھول بجنے کی لگاتار آوازیں آنے لگی، لیکن ٹیم چلتی رہی۔ اچانک ہی جاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور جنگلیوں کا ایک گروہ جو بالکل ننگا تھا، ہاتھ میں تیر کمان اور نیزے لیے سامنے کھڑا تھا۔ ان کے نیزے یقیناً زہر آلود تھے اور پھر ان کو دیکھتے دیکھتے چاروں طرف سے وحشیوں کے سر ابھرنے لگے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہ چاروں طرف سے وحشیوں کے نرغے میں ہیں۔ عمران سب سے آگے تھا۔ اچانک وحشیوں کی صفوں میں حرکت ہوئی اور ایک وحشی لمبا سا نیزہ لے کر آگے بڑھا۔ اس نے جنگلی زبان میں کچھ چیخ کر کہا۔ اس کے جواب میں عمران نے بھی اسی زبان میں بات کی۔ عمران کے منہ سے یہ جنگلی زبان اتنی روانی سے سن کر سب حیران ہو گئے۔ عمران بذات خود ایک جنگلی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک جنگلی زبان میں بات چیت ہوئی، پھر جنگلیوں نے انہیں اپنے نرغے میں لے کر چلنا شروع کر دیا۔ عمران نے ٹیم کو بتایا کہ یہ واقعی بومی قبیلہ ہے، میں نے ایک جادوگر کا روپ دھارا ہے۔ میں نے ان کو بتایا ہے کہ میں بہت بڑا جادوگر ہوں، اور تمہارے متعلق میں نے انہیں بتایا ہے کہ یہ بھی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو سارے کا سارا جادوگروں کا قبیلہ ہے۔ ان کے پاس آتشی زبان والے سانپ ہیں جو بہت دور سے ان کے ایک اشارے پر لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ وہ ہم سے کافی متاثر معلوم ہوتے ہیں، لیکن آگے جا کر ہم پر کیا گزرے گی یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اب ہمیں انتہائی احتیاط برتنی پڑے گی کیونکہ ہماری ذرا سی بے احتیاطی ہمیں بڑی مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ جنگلیوں کا غول ڈول بجاتا ہوا ناچتا کودتا ان کو لیے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر گھنے جنگل کے عین درمیان میں ایک بہت بڑا قلعہ درختوں سے قطعی پاک نظر آیا۔ اس میں بے ڈنگی قسم کی جھونپڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور کئی عورتیں اور بچے ننگ دڑنگ پھر رہے تھے۔ درمیان میں ایک بہت بڑی جھونپڑی تھی جس کو شیر کی کال سے ڈھانپا گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جھونپڑی تمام تر شیر کی کال کی بنی ہوئی ہے۔ یقیناً یہ جھونپڑی قبیلے کے سردار کی تھی۔ اس کے آگے جا کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ ہزاروں جنگلی ان کو دیکھنے کے لیے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جنگلیوں کا سردار سر پر پروں کا تاج پہنے جھونپڑی سے باہر نکلا۔ وہ ایک قوی ہیکل اور انتہائی طاقتور آدمی تھا۔ اس کے دونوں طرف دونوں جوان عورتیں انسانی کوپڑی میں شراب لیے چل رہی تھیں۔ سردار کے گلے میں انسانی کوپڑیوں کا ہار تھا جن کو جنگلیوں کی خاص تکنیک سے سکا کر چھوٹا کر لیا گیا تھا۔ عمران کے ساتھ آنے والے چھوٹے سردار نے اسے عمران کی وہ باتیں بتائیں جو اس نے پھر عمران سے براہ راست بات چیت کی۔ گفتگو کے بعد سردار اپنی جھونپڑی میں چلا گیا اور اس کے ساتھیوں کو ایک اور جھونپڑی میں قید کر لیا گیا، لیکن ان کے سامان کو بالکل نہیں چھیڑا گیا کیونکہ جنگلیوں کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ سامان کیسا ہے۔ جھونپڑی میں جاتے ہی سب عمران کے گرد ہو گئے۔ سردار سے اس کی کیا باتیں ہوئی؟ بات چیت کیا خاص ہونی تھی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا بات ہوئی ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ اب انہوں نے شرط رکھی ہے کہ ہم آج رات کو تمہاری جادوگری کی آزمائش کریں گے۔ اگر تم پورے اترے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور تمہارے باقی ساتھیوں کو بھون کر کھا جائیں گے کیونکہ ان کے خیال میں تم جادوگر معلوم نہیں ہوتے، اور اگر میں ناکام ہو گیا تو مجھے قتل کر دیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ہمیں کیوں چھوڑ دیں گے؟ صفدر نے سوال کیا۔ تمہارا گوشت کڑوا ہے نا؟ عمران نے ایسا منہ بنایا جیسے کونین چبائی ہو، اور اس حالت میں ہونے کے باوجود باقی ساتھیوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تمہیں اسی لیے چھوڑ دیں گے کہ ان کے خیال میں تم کسی نامعلوم قبیلے کے لوگ ہو۔ وہ تمہیں چھوڑ کر تمہارے قبیلے سے دوستی کا آغاز کریں گے۔ وہ آزمائش کیا ہوگی؟ تنویر نے پوچھا۔ جولیا کی کھوپڑی منگوانی پڑے گی، عمران بولا۔ یہ بات تنویر نہ جانے کس خیال کے تحت ضبط کر گیا۔ بہرحال آپ لوگ کسی قسم کا ذکر نہ کریں۔ کیا ایکس2 ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا؟ ناشاد نے سنجیدہ ہو کر دریافت کیا۔ ضرور مدد کرے گا، وہ ہر لمحہ ہمارے نزدیک رہتا ہے، عمران نے کہا۔ بہرحال آپ لوگ کسی قسم کی فکر نہ کریں۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں تمہیں اکیلے مرنے نہیں دوں گا، اور اگر ناکام ہو گیا تو پھر وہ معاملہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی جانیں تو بچ جائیں گی۔ نہ جانے یہ بات کہتے ہوئے عمران کے چہرے پر حماقتیں کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ گریٹ باس، جوزف نے نعرہ لگایا۔ وہ یہاں بھی بوتل کو منہ لگائے شراب پی رہا
تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ باس ہر موقع پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ آدھی رات کے وقت ان سب کو باہر نکالا گیا۔ سامنے کھلے میدان میں ایک دائرہ باندھے سارے جنگلی بیٹھے تھے۔ درمیان میں وسیع میدان تھا، چاروں طرف مشعلیں جل رہی تھی۔ ایک طرف لکڑی کی ایک بڑی سی اسٹیج پر سردار بیٹھا ہوا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس میدان میں لے جایا گیا، باقی ٹیم کو ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ عمران نے جھونپڑی ہی میں کوڈ ورڈز میں بلیک زیرو کو ہوشیار رہنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس وقت بلیک زیرو اس میدان کے نزدیک ہی ایک گنے درخت پر بیٹھا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف اشارے ہی کا منتظر تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس لیے اس کے دیکھ لیے جانے کا خطرہ نہیں تھا، چنانچہ وہ اطمینان سے بیٹھا تھا۔ عمران کو بتایا گیا کہ اسے زمین پر لٹا دیا جائے گا اور ہمارا ایک آدمی اس کی گردن پر کلہاڑی مارے گا۔ اگر اس کلہاڑی کی ضرب سے وہ مر گیا تو وہ جھوٹا جادوگر ثابت ہوگا، اگر کلہاڑی کی ضرب نے اسے نقصان نہ پہنچایا تو سچا جادوگر ہوگا، اگر وہ مر گیا تو اس کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ عمران ایک لمحہ سوچ کر کہا، اگر میں اس کلہاڑی مارنے والے کو اپنے علم کے زور سے پہلے ہی مار دوں تو کیا میں سچا ہوں گا یا نہیں؟ سردار نے ایک لمحہ سوچ کر کہا کہ تم کلہاڑی مارنے والے آدمی کو کلہاڑی مارنے سے پہلے بغیر کسی ہتھیار کے مار دو تو اس کے 2 آدمی تم پر وار کریں گے، اگر تم انہیں بھی مار دو تو 3 آدمی، یہاں تک آ کر 5 آدمی تک تم پر وار کریں گے۔ 5 آدمی تم پر وار کرنے سے پہلے مر گئے تو سچے قرار دیا جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ ایک بات ہے، اگر 2 آدمی تک میں مار دوں، 2 کے بعد میرے دیگر ساتھی انہیں اپنے جادو کے زور سے مار دیں گے تو کیا میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ سردار نے ایک لمحہ سوچتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہوا تو ہم تمہارے ساتھ ان کو بھی چھوڑ دیں گے، لیکن تم یا تمہارے ساتھی ایسا کر لے میرے خیال میں ناممکن ہے۔ جادوگروں کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، اور ہاں، مجھے زمین پر لٹانے سے پہلے عمل پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ سردار نے اسے اجازت دے دی اور پھر عمران کے چہرے پر یکدم سرخی چھا گئی۔ اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے عجیب سی زبان کے الفاظ نکل رہے تھے، ہر لمحہ اس کی اچھل کود میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دراصل وہ بلیک زیرو کو انگوٹھی کے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کوڈ ورڈز میں ہدایات دے رہا تھا۔ جبکہ بلیک زیرو کو ہدایات دے چکا تو اس نے بلیک زیرو کو ہدایت کی کہ وہ بطور X2 صفدر کو ٹرانسمیٹر پر ہدایات دے دے تاکہ 2 آدمیوں کے بعد انہوں نے کس طرح کام کرنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی حرکات سست ہو گئیں اور پھر وہ اطمینان سے زمین پر نیم مدہوشی کی حالت میں لیٹ گیا۔ ساری ٹیم انتہائی حیرت سے عمران کی حرکات کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران کیا کر رہا ہے۔ اچانک صفدر کی گڑی میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور صفدر حیران رہ گیا کہ کس کی کال ہوگی۔ ہیلو صفدر سپیکنگ، صفدر نے آہستہ سے کہا۔ X2 کی مانوس آواز ابری اور صفدر کے چہرے پر یکدم خوشی کے آثار پھیل گئے۔ یس سر، کیا حالات ہیں؟ سر، ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ پھر صفدر نے اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دیکھو، میں تمہارے نزدیک ہوں۔ پھر X2 نے شرط کے متعلق صفدر کو تفصیل سے بتلایا، پھر کہا کہ سب ساتھی چوکنے ہو جائیں۔ جب 2 آدمی ختم ہو جائیں تو اس کے بعد 5 آدمیوں کو تم نے مشین گنوں سے ختم کرنا ہے، لیکن ہوشیار ہو کر۔ مسٹر صفدر، تمہاری ذرا سی غلطی سے عمران کی جان چلی جائے گی۔ اوکے، اوور اینڈ آل۔ اور صفدر نے تمام ساتھیوں کو X2 کی کال کے متعلق بتایا۔ سب نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اس سچویشن میں قابو پا جائیں گے۔ صفدر نے مشین گن چیک کر کے سنبھالی۔ اتنی دیر میں ایک جنگلی بڑا سا کلہاڑا لیے عمران کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے کلہاڑا مارنے کے لیے اٹھایا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سب دم بخود تھے کہ نہ جانے آئندہ کیا ہوگا۔ ابھی جنگلی اچھی طرح کلہاڑا سنبھال بھی نہ سکا تھا کہ جنگلی کی کھوپڑی فضا میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی اور وہ کلہاڑے سمیت زمین پر مردہ ہو کر رہ گیا۔ تمام جنگلیوں کے ڈر کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ تمام پارٹی حیران تھی کہ یہ فائر کہاں سے ہوا، کیونکہ فائر اچانک ہوا تھا۔ یہ تو وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ فائر یقیناً X2 کی طرف سے ہوا ہوگا اور سائلنسر لگی رائفل سے ہوا ہے۔ سردار کے اشارے سے 2 اور جنگلی کلہاڑے سنبھالے آگے بڑھے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے عمران پر وار کرنا چاہا، لیکن وار کرنے سے پہلے ہی ان کے دل میں رنگین سوراخ ہو گئے اور زمین پر گر گئے۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں جنگلی مردہ تھے۔ جنگلیوں کی ایک بار پھر چیخیں نکل گئیں۔ اب وہ خوفزدہ تھے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ شخص ضرور کوئی بڑا جادوگر ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کلہاڑی مارنے والے کس طرح مر جاتے ہیں۔ اب تو سردار کے چہرے پر بھی خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگی، لیکن اس نے 3 اور جنگلیوں کو اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے اور اب صفدر تیار ہو گیا۔
इमरान ने सरदार से कहा, अब मेरे साथी जादूगरी दिखाएंगे। चुनांचा सरदार के इशारे से 3 आदमी आगे बढ़े। अभी वो इमरान के नजदीक भी नहीं पहुंचे थे कि यकदम रट रट की मखसूस आवाज उभरी और तीनों के तीनों जमीन पर तड़पने लगे। सरदार ने खड़े होकर इमरान और उसके साथियों की जादूगरी को तस्लीम कर लिया। सरदार ने इमरान को खुद उठाया और फिर उनके सामने जंगली ताजीम से झुक गए। वो उनके नजदीक आने से भी खौफजदा थे। अब पूरी टीम को अच्छी झोंपड़ी में रखा गया। उनकी खूब अच्छी तरह मेहमान नवाजी की गई और फिर दूसरे दिन उन्हें वहशी अपने सरहदों से पार छोड़ गए। भूमि कबीले से बचकर निकल आने पर सब खुश थे। इमरान ने अपनी सलाहियतों का लोहा एक बार फिर मनवा लिया। X2 अब उनसे आगे आगे था। काफी चक्कर लगाने के बाद अब वो सही सिमत पर आ गए थे। ब्लैक जीरो के नक्शे के मुताबिक माकाजुंगा का हेडक्वार्टर सिर्फ 4 दिन की मुसाफत पर था, क्योंकि इमरान के अंदाजे के मुताबिक माकाजुंगा हेडक्वार्टर खजावार कबीले के आसपास ही था और खजावार कबीला यहाँ से 3 दिन की मुसाफत पर फैला था। उन्होंने खजावार कबीले से भी बचकर निकलना था, क्योंकि खजावार कबीले भी कुछ कम वहशी और खतरनाक न थे। चुनांचा 3 दिन तक वो चलते रहे। तीसरे दिन वो खजावार कबीले की सरहद से तकरीबन 2 मील दाएं से आगे निकल गए और जब उन्होंने खजावार कबीले को पीछे छोड़ दिया तो सब ने इत्मीनान का सांस लिया। तकरीबन 2 दिन और चलने के बाद वो जंगल में दूर दूर तक फैले हुए एक वसीअरीज मैदान के सिरे पर पहुंच गए। इस मैदान में दरख्तों के बजाय झाड़ियां थी। ब्लैक जीरो से 1 दिन पहले यहाँ पहुंच चुका था, इसीलिए जब ट्रांसमीटर पर उसने इमरान को इस मैदान के मुतालिक बताया तो इमरान समझ गया कि ये ही उनकी मंजिल मकसूद है। लेकिन इस मैदान में दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तो कोई आदमी भी नहीं है। तनवीर ने मैदान को देखते हुए कहा, जानवर तो हैं। इमरान ने चोट की, तुम खुद जानवर, मेरे साथ बात करते हुए जुबान काबू में रखा करो। लो, अब जुबान भी संभाल कर रखे। जुबान ना हुई को हिनूर हीरा हो गया। मेरा ख्याल है कि अभी माकाजुंगा हेडक्वार्टर दूर होगा। कैप्टन शकील ने दखल अंदाजी की, मैं साबित कर सकता हूँ कि यही माकाजुंगा का हेडक्वार्टर है। इमरान ने चैलेंज करते हुए कहा, किस तरह? सफदर ने पूछा, ये देखो, जमीन पर फौजी बूट के निशान हैं। अब बतलाओ भला, जंगली जानवर या वहशी लोग फौजी बूट पहने फिरते हैं? और इमरान की ये बात सुनकर सब लोग झुककर गौर से फौजी बूट के एक मध्यम निशान को देखने लगे। अब सबको इमरान की बात का कायल होना पड़ा। तो फिर ये हेडक्वार्टर जमींदोज होगा। कैप्टन शकील ने ख्याल पेश किया। बिल्कुल ठीक है, इमरान ने तहसीनामेज जवाब दिया, लेकिन इसका रास्ता कहाँ होगा? तनवीर झंझला कर रह गया। लेकिन अगर यही हेडक्वार्टर है तो यकीनन पहरे का भी इंतजाम हुआ होगा। सफदर ने कहा, बिल्कुल, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। तो इसका मतलब है कि हम लोग देखे जा चुके हैं। नाशाद बोला, यकीनन, लेकिन अब तक हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। न जाने इसमें क्या मसलहत है। बहरहाल हमें इनके हेडक्वार्टर का रास्ता ढूंढना है। सब लोग 2-2 की टोलियों में बढ़ जाओ और फिर इधर उधर के रास्तों पर गौर करें। तनवीर ने कहा। वो सब 2-2 की टोलियों में बटकर इधर उधर फिरने लगे। इमरान और जोसेफ एक तरफ थे। कहीं भी कोई रखना नजर नहीं आ रहा था। दोपहर तक सब लोग ढूंढते रहे, लेकिन कुछ पता न चला। दोपहर को सब लोग जंगल में वापस चले गए। उन्होंने वहां जाकर कैंप लगाया और सस्ताने लगे। अचानक शोर सा महसूस हुआ और फिर देखते ही देखते उनके कैंप मशीन गनों की जद में थे। न जाने कहां से सिपाही टपक पड़े थे। उनके जिस्मों पर बाकायदा वर्दियां थी और वो हाथों में जदीद तर्ज की मशीन गने लिए हुए थे। उन लोगों को संभलने का मौका तक न मिला और गिरफ्तार कर लिए गए। यकीनन वो माकाजुंगा के एजेंट थे। वो उन सबको नरगे में लेकर मैदान की तरफ चले। एक जगह जाकर उन्होंने एक झाड़ी को खींचा तो जमीन पट गई। उसमें रास्ता नजर आने लगा। वहाँ हर सिपाही एक एक गन लिए रास्ते पर खड़ा था। सबको उन सीढ़ियों के जरिए नीचे ले जाया गया। अंदर वाकई एक अलहदा दुनिया थी, एक जदीद तरीन शहर। सब लोग ये इंतजामात देखकर हैरान रह गए। उनके तस्वर में ही नहीं आ सकता था कि माकाजुंगा का हेडक्वार्टर वसीओ अरीज और इतना जदीद भी हो सकता है। बहुत बड़े हॉल, कमरे, गैलरियां, उनमें बाकायदा इलेक्ट्रिक मशीन नस्ब थे और वहाँ घुटन का एहसास बिल्कुल नहीं था। इमरान और उसकी टीम को लेकर ये लोग एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचे। उस हॉल को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो लोग अलिफ लैला के माहौल में आ गए हों। हर चीज कदीम तर्ज मुआशरत की और इंतहाई पुरतकल्लुफ थी। उन्हें हॉल के दरमियान में खड़ा कर दिया गया। वो लोग हैरान हैरान नजरों से हॉल को देख रहे थे। अचानक दीवारों में से आवाज आई, तुम लोग माकाजुंगा को तबाह करने आए थे। अब देखो, क्या उसे वाकई तबाह कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, इमरान ने जवाब दिया। वो किस तरह? आवाज आई, मेरे पास अलादीन जिन वाला चिराग है जो 1 मिनट में हर चीज तबाह कर सकता है। इमरान ने हमाकत आमेज लहजे में कहा, हम तुम्हारे मजाक की दाद देते हैं नौजवान, कि तुम इस हालत में भी मजाक कर सकते हो। तुम्हारा लीडर कौन है? आवाज आई, मैं हूँ, इमरान ने कहा। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही, फिर दरवाजा खुला।
اور چند سپاہی مشین گنیں لیے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے عمران کے سوا باقی سب کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ عمران وہی کھڑا ہو گیا اور باقی سب لوگ واپس چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص عمران کو لے کر ایک طرف بڑھا۔ اس کمرے میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، صرف دو آدمیوں کی شبیہ نظر آ رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آواز ابری جو یقیناً ان دو میں سے کسی ایک کی ہوگی۔ مولوی فضل الدین، عمران نے جواب دیا۔ صحیح نام بتاؤ۔ لہجہ بے حد کرخت ہو گیا۔ صحیح نام کا تو میرے باپ کو بھی پتا نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہی میرا نام ہے، اب چاہے اس کے ہجے غلط ہیں یا ٹھیک، جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا صحیح علم تو میرے باپ کو بھی نہیں۔ اگر اسے ہوتا تو وہ یقیناً اسے صحیح کر دیتا۔ میرے بھائی اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ نہیں جی، میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں۔ ہاں تو تمہارا صحیح نام مولوی فضل الدین ہے؟ جی، اللہ کے فضل سے۔ تم کس ملک کے ایجنٹ ہو؟ توبہ کرو جی، میں اور ایجنٹ، میں تو ایک معمولی سا سپاہی ہوں جسے انہوں نے بطور مزدور ان لوگوں کے ساتھ بیچ دیا ہے۔ جھوٹ بولتے ہو، ابھی سب کچھ پتا کر لیتے ہیں۔ تم ماکا زونگا سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ آپ میں ماکا کون ہے اور زونگا کون ہے؟ میں ماکا ہوں اور یہ زونگا، دائیں طرف والے نے کہا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ماکا زیادہ عظیم ہے کیونکہ وہ دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، میں اس سے زیادہ عظیم ہوں، اس کا نمبر میرے بعد کا ہے۔ عمران نے زور سے قہقہا مارا اور پھر کہنے لگا، میں نے تو دنیا میں پہلی بار تماشا دیکھا ہے، جو زیادہ عظیم ہے اس کا نام بعد میں اور جو کم عظیم ہے اس کا نام شروع میں ہو۔ تم ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہو؟ ماکا بول اٹھا۔ جی، مزہ تو بہت آئے گا، عمران نے معصومیت سے جواب دیا۔ ہاں، اور ماکا نے گھنٹی بجائی اور کچھ لوگ مشین گنے سنبھالے اندر آ گئے۔ اسے لے جاؤ اور اسے مشین نمبر 2 میں ٹیسٹ کرو۔ اور وہ دونوں عمران کو لے کر باہر نکل آئے۔ اسے لیے ہوئے وہ ایک اور کمرے میں آئے۔ یہاں ایک بہت بڑی مشین تھی جس کے درمیان ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اور سامنے ایک بڑی سی اسکرین تھی۔ ان دونوں نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ کیا میری حجامت بڑی ہوئی ہے؟ عمران بولا۔ کیا مطلب؟ کمال ہے یار، سب ہی بدھو ہو، مطلب کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ کیا یہ باربر شاپ ہے؟ مجھے تو مشین اور کرسی کسی نائی کی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو میری کرو کٹ بنانا اچھا۔ اور وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ان میں ایک بولا، فکر نہ کرو، ابھی سب کچھ بتا دو گے، پھر پوچھوں گا آٹے دال کا باؤ۔ ابھی پوچھ لو، آٹا بڑا مہنگا ہے، 40 روپے من اور دال 120 روپے من۔ اور وہ ایک بار پھر ہنسنے لگے۔ اب انہوں نے ایک لوہے کی ٹوپی عمران کے سر پر پہنا دی۔ عمران اب اپنے سر کو ہلا نہیں سکتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مشین کو آپریٹ کیا۔ اسکرین پر ہلکی ہلکی سی لہریں کودنے لگی۔ تمہارا نام؟ عمران کو ایسے محسوس ہوا جیسے دوسری آواز آئی اور پھر عمران کے دماغ میں کلبلی سی مچنے لگی۔ اس کی زبان سے خود بخود الفاظ نکلنے لگے، لیکن اس نے اپنے تمام قوت ارادی کو بروئے کار لاتے ہوئے انہیں روکا اور اسکرین پر لہریں زور زور سے کودنے لگی۔ اور پھر اس نے اپنے دماغ کو بلینک کیا۔ ہر قسم کا خیال اس نے اپنی قوت ارادی سے نکال پھینکا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسکرین بالکل صاف تھی۔ انہوں نے اور بھی بہت سے سوالات پوچھے، لیکن عمران کی بے انتہا طاقتور قوت ارادی کام کر گئی اور اسکرین صاف رہا۔ عمران کو اس جدوجہد میں پوری دفاعی طاقتیں کام میں لانا پڑی۔ چنانچہ آخر کار ان دونوں نے تک ہار کر اسے کرسی سے اٹھا لیا۔ بڑے سخت جان ہو یار، ایک بولا۔ کمال ہے بھائی، یہ پہلا شخص ہے جس نے اب اس مشین کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے سخت جان بھی موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، دوسرا بولا۔ اور پھر وہ دونوں عمران کو ایک کمرے کے پاس لے جا کر اسے دھکیل دیا۔ یہاں عمران کے سب ساتھی موجود تھے۔ اس نے سب کو واقعہ بتلایا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کرنے لگے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ایک بار پھر اس کی طلبی ہوئی۔ اس بار انہیں ایک وسیع کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے میں لے جانے سے پہلے ان کی مکمل تلاشی لی گئی، سگریٹ تک چھین لیے گئے۔ یہاں ایک بہت بڑی میز کے سامنے 2 اشخاص جو یقیناً یورپی تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ ان میں سے ایک ماکا ہے اور دوسرا زونگا۔ عمران نے نعرہ لگایا، ہیلو ماکا زونگا، اور سب ممبر چونک کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ تمیز سے بات کرو، نہیں تو ختم کر دیے جاؤ گے۔ اب تو اپنا صحیح نام بتا دو، زونگا نے سوال کیا۔ مولوی فضل الدین، عمران نے جواب دیا۔ نہیں جناب، اس کا اصلی نام علی عمران ہے۔ عمران کے ساتھیوں میں سے ایک کی آواز ابری اور سب چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ عمران بھی حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ یہ آواز کیپٹن شکیل کی تھی۔ ماکا کے اشارے سے کیپٹن شکیل کو آگے لے جایا گیا۔ سارے ممبر کیپٹن شکیل کی غداری سے کھول اٹھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیپٹن شکیل کی بوٹیاں اڑا دے۔ تم کون ہو؟ ماکا نے پوچھا۔ جی میں سیکرٹ ایجنٹ ہوں۔ تمہارا نام؟ میرا نام کیپٹن شکیل ہے۔ کیپٹن شکیل، تم ہمیں یہ سب کچھ خود بخود کیوں بتلا رہے ہو؟ حالانکہ سیکرٹ سروس ایجنٹ تو بڑے سخت جان ہوتے ہیں۔ جی ہاں، دراصل میں شروع ہی سے ماکا زونگا کا ہم خیال ہوں۔ ماکا زونگا کے مقاصد سے ہم آہنگی رکھتا ہوں۔ میرے ملک کی موجودہ حکومت انتہائی نکمی اور ظالم ہے، اور اب صرف اور صرف ماکا زونگا ہی ہمیں اس حکومت سے نجات دلا سکتی ہے۔ لیکن تم نے کبھی ہمارے ساتھ رابطہ
رابطہ قائم نہیں کیا۔ دراصل میں موقع کے انتظار میں تھا کہ میں کسی طرح ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤں تو صحیح پوزیشن عرض کروں، ورنہ مجھ پر کوئی اعتبار نہ کرتا۔ اگر ابھی ہم تم پر اعتبار نہ کریں تو زونگا بولا، تو میری بدقسمتی ہے، اب میرا ہر قسم کا ٹیسٹ لے لے، میں آپ کا وفادار رہوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا باس کون ہے؟ X2 تم X2 کے ماتحت ہو؟ جی ہاں۔ X2 کون ہے؟ جی مجھے علم نہیں، X2 کے متعلق کوئی بھی نہیں بتا سکتا، یقین جانیے۔ اچھا یہ تمہارا لیڈر ہے؟ ماکا نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی ہاں۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ یہ انتہائی خطرناک اور چالاک آدمی ہے، اگر آپ نے اس کو قابو میں نہ کیا تو یہ ہیڈ کوارٹر چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کیپٹن شکیل سے باقی ممبروں کے متعلق پوچھا اور کیپٹن شکیل نے سب کچھ ماکا زونگا کو سچ سچ بتا دیا۔ ہاں دیکھو نوجوان، ہم تمہاری سچائی سے بہت خوش ہوئے، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم ہمیشہ ہمارے وفادار رہو گے، کیونکہ ہم عمران اور تم سب کے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم تمہیں اپنے خاص کیبنٹ کا مشیر مقرر کرتے ہیں اور آج سے تم ہمارے بعد 15ویں نمبر پر ہوگے، اور ہاں ان کو کیا سزا دی جائے؟ فوراً قتل کر دیا جائے، کیپٹن شکیل نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ صفدر تنویر ناشاد اور جوزف کا غصے کے مارے برا حال تھا، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیپٹن شکیل کو کسی طرح ختم کر دیں۔ کیپٹن شکیل تمہارا مشورہ درست ہے، لیکن ابھی اس پارٹی سے خفیہ سرکاری راز گلوانے ہیں، اس لیے ان کا فیصلہ سوچ سمجھ کر تمام ممبران کی مرضی سے کریں گے۔ سر ایک عرض ہے، کیپٹن شکیل نے ان سے کہا۔ کیا بات ہے؟ سر پارٹی کی ایک ایجنٹ مس جولیا آپ کے پاس ہے، آپ نے اسے نیو یارک سے اغوا کیا تھا۔ ہاں وہ لڑکی ہمارے ہی پاس ہے جناب، میں شروع سے ہی اس سے محبت کرتا ہوں، میری تمنا پوری کر دی جائے، آپ اسے مجھے بخش دیں، میں اس سے شادی کروں گا۔ ہاں اچھا ہم غور کریں گے۔ عمران سمیت ٹیم کے سارے ممبرز یہاں کانوں میں مزدوری کر رہے تھے، ان پر سخت نگرانی کی جاتی تھی، ذرا سی غفلت سے انہیں سخت سزا دی جاتی۔ جوزف غریب کا تو بہت ہی برا حال تھا، کیونکہ اسے مقدار کے مطابق شراب نہیں مل رہی تھی۔ یہ کانیں سونے کی تھی جن سے سونا نکال کر سائنسی مشینیں منگوائی جاتی تھی تاکہ دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ ہیڈ کوارٹر میں دن رات سینکڑوں سائنسدان کام کرتے رہتے تاکہ نئی نئی مشینیں ایجاد کر لیں۔ اس شہر کی آبادی تمام تر تخریب پسندوں پر مشتمل تھی، صرف مزدور ایسے تھے جو پکڑ کر لائے گئے تھے۔ کیپٹن شکیل 2 بار یہاں آ کر انہیں چیک کر گیا تھا، انہیں یہاں کام کرتے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ رات کو انہیں ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا اور اس کوٹری کے باہر زبردست پہرا ہوتا۔ آج رات جیسے ہی انہیں کوٹری میں دھکیل کر اندر کر دیا گیا، عمران اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے صفدر کو اشارہ کیا اور دونوں نے اپنی اپنی پنڈلیوں سے بندے ہوئے اوزار نکالے جو وہ صبح کان سے چھپا کر لائے تھے۔ رات ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سرنگ کھود کر کوٹری سے باہر نکلیں گے، چنانچہ انہوں نے ان اوزاروں سے سرنگ کھودنی شروع کر دی۔ ساری رات کام ہوتا رہا، آخر صبح تک وہ ایک سرنگ کھودنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی اتنی جلدی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ زمین بڑی نرم تھی۔ صبح کو وہ پھر کام پر چلے گئے۔ اچانک عمران کو انگوٹھی والے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ عمران پیشاب کرنے کے بہانے ایک طرف اوٹ میں چلا گیا۔ کال بلیک زیرو کی تھی۔ بلیک زیرو نے اسے بتایا کہ کیپٹن شکیل نے اسے رات کو کال کیا تھا کہ اس نے اپنی حکمت عملی سے ان کا اعتبار حاصل کر لیا ہے، اس نے جولیا کو بھی آزاد کرا لیا ہے اور اسے سب کچھ بتا کر اپنے ساتھ رکھ لیا ہے۔ اس نے اسے جگہ کے متعلق کافی کچھ معلومات حاصل کی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق یہاں کام کا اہم حصہ پاور پلانٹ ہے جس سے یہاں کا تمام نظام چل رہا ہے۔ پاور پلانٹ کسی طرح تباہ کر دیں تو بہت سے کام خود بخود ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کو تباہ کرنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانے والے راستوں پر نگرانی کرنی پڑے گی۔ عمران نے اسے بتایا کہ اسے پہلے ہی علم تھا کہ کیپٹن شکیل جان بوجھ کر انہیں سب کچھ بتلا رہا ہے تاکہ ان کا اعتبار حاصل کرے، اور وہ واقعی اس میں کامیاب بھی رہا۔ عمران نے اسے سرنگ کے متعلق بھی بتایا اور اسے کہا کہ وہ کیپٹن شکیل کو ہدایت کرے کہ وہ رات کو ہماری کوٹلی کے شمالی ویران حصے میں کوٹلی سے تقریباً 200 گز دور آ جائے، ہم اسے وہیں ملیں گے۔ چنانچہ رات کو وہاں عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل کی ملاقات ہوئی۔ کیپٹن شکیل نے اسے سب کچھ بتلایا۔ اس نے کہا کہ میں انقریب ان کے ایک خاص آدمی کو جو میرے عہدے کے برابر ہے یہاں دھوکے سے لے آؤں گا، تم اسے ختم کر کے اس کا میک اپ کر لینا اور اپنا میک اپ اس پر کر لینا، میں میک اپ کا سامان مہیا کر دوں گا، پھر ہم دونوں مل کر ان کی تباہی کے متعلق کچھ سوچیں گے، اسی طرح آہستہ آہستہ ہم سب کو آزاد کر دیں گے۔ کیپٹن شکیل واپس چلا گیا اور صفدر اور عمران دونوں چپ کر صورتحال کا معائنہ کرنے کے لیے ادھر ادھر پھرنے لگے۔ پھرتے پھراتے وہ جیسے ہی ایک گیلری میں گھسے، انہیں مشینیں چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں ایک بہت بڑے ہال سے آ رہی تھی جن کے دروازے پر 2 آدمی مشین گنے اٹھائے کھڑے تھے۔ عمران اور صفدر فوراً ایک دوسری گیلری میں مڑ گئے۔ اسی طرح چپتے چھپاتے انہوں نے تمام ہیڈ کوارٹر کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ اب ان کے لیے کام کرنے کے لیے آسانی ہو گئی، چنانچہ وہ واپس اپنی کوٹلی میں چلے گئے۔
ताकि लाइहा अमल पर गौर कर सके। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि आपकी मदद से हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके। शुक्रिया। 2 दिन बाद इमरान को खुफिया ट्रांसमिशन के जरिए इत्तला मिली कि कैप्टन शकील एक अफसर को जिसकी जगह इमरान ने लेनी थी लेकर रात को कोठरी के पास आ रहा है। चुनांचा रात के मुकर्ररा वक्त पर इमरान और सफदर वहीं चुप कर दुबक गए और उसे उन्हें कैप्टन शकील और एक और आदमी जो कद कामत में इमरान के बराबर था बातें करते हुए नजर आए। कैप्टन शकील के हाथ में एक छोटा सा बैग था। जैसे वो इमरान के पास से गुजरे, इमरान ने उछलकर उसके मुंह पर हाथ रख लिया। उसने बड़ी जदोजहद की लेकिन इमरान की गिरफ्त में वो हिलने से भी माजूर हो गया था। इमरान उसे उठाकर कोठरी में ले आया। कैप्टन शकील भी उसके साथ था। उसे देखकर जोसेफ और दीगर अफराद गुस्से में आ गए क्योंकि उन्हें सही पोजीशन का इल्म नहीं था। इमरान ने उन्हें रोका और सही सूरत हाल से आगाह किया। अब उस आदमी को खत्म करने का मसला था। इमरान ने उसके हाथ पांव बांधकर जमीन पर गिरा दिया। तुम्हारा नाम? इमरान ने पूछा, लेकिन वो चुप रहा। इमरान ने जोसेफ को इशारा किया। उसने उसकी नाक पकड़कर अंदर से दबाई। उसके नाक में से खून आने लग गया। फिर उसने आसानी से अपना नाम बतला दिया। मेरा नाम पनाकी है। नापाकी? इमरान ने कहा। ये क्या नाम है? नापाकी नहीं, पानाकी। उस शख्स ने झंझलाकर कहा। तुम्हारी बीवी है? इमरान ने आहिस्ता से पूछा और वो पहुंचका रह गया। क्यों? वैसे ही पूछ लिया। इमरान ने मासूमियत से जवाब दिया। हाँ। वो हैरत ज़दा होकर बोला, ठीक है, अब तुम अपने कपड़े उतार दो। पानाकी पर एक बार फिर हैरत का शदीद दौरा पड़ गया, लेकिन इमरान ने जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवा दिए। उसके कपड़े खुद पहनकर उसे अपने कपड़े पहना दिए। अब मेकअप की बारी थी। ये सब बातें इमरान ने इसलिए की थी ताकि लबो लहजे पर पूरा काबू पा सके। आधा घंटे के बाद वहाँ सूरत हाल तब्दील हो गई। इमरान पानाकी की जगह आ चुका था और इमरान मेकअप करने के बाद इमरान ने कैप्टन शकील को इशारा किया कि उसे खत्म कर दिया जाए। कैप्टन शकील ने इशारतन इमरान से पूछा कि उसे किस तरह खत्म किया जाए। ब्लेड से इसकी कलाई की रग काट दी जाए और इसके तस्वर से ही सबके जिस्म में सर्दी की एक लहर सी दौड़ गई कि ये खुदकुशी का एक खौफनाक तरीन हरबा था, इसलिए कि जान आहिस्ता आहिस्ता निकलती है और इंसान सिसक कर मर जाता है। कैप्टन ब्लेड लेकर आगे बढ़ा तो पानाकी ने जान बचाने के लिए इंतहाई जदोजहद की और हम आलूदा नजरों से इमरान की तरफ देख रहा था, लेकिन उस वक्त इमरान का चेहरा चट्टान की तरह सख्त था। कैप्टन शकील ने सपाट चेहरे से उसकी कलाई की रग काट दी। रग के कटते ही खून का फव्वारा उबलना शुरू हो गया। सब शिशदर होकर उसे देखते रहे। खून मुतवातर निकल रहा था और पानाकी का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता जर्दी माइल हो रहा था। अब कमजोरी से उसकी आंखें बंद होने लगी। वो आखिरी बार तड़पा और बेहोश हो गया और फिर बेहोशी ही में एक हल्की सी तड़प के साथ खत्म हो गया। अपने सामने किसी को इस तरह मरते देखना और चुपचाप खड़े रहना सीक्रेट सर्विस के कई मेंबरान के लिए पहला और भयानक तजुर्बा था। उनके लाशऊर ने उन्हें झंझोड़ डाला। सफदर सोचने लगा कि आखिर ये भी तो एक इंसान था, इसके भी एहसासात थे। सैकड़ों अरमान इसके दिल में भरे होंगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी होंगी जो अभी पूरी ना हुई होंगी। हमें क्या हक है कि हम एक इंसान को सिसका सिसका कर मारें, चाहे वो दुश्मन था, लेकिन था तो इंसान। आज इंसानियत कहाँ मुंह छुपा गई। लेकिन फिर उसके ख्याल का धारा मुड़ गया। उसे याद आ गया कि वो एक अजीम फर्ज की अदायगी कर रहे हैं। अगर एक आदमी मरने से करोड़ों आदमियों की जान बच जाती है तो ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इंसानियत की बहाली के लिए खून की अशद जरूरत होती है, चाहे वो खून दुश्मन का हो या दोस्त का। इंसानियत की देवी की परवरिश खून पर होती है। एक का खून सैकड़ों के लिए अमृत बन जाता है। तकरीबन ऐसे ही ख्यालात सबके जहन में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन इमरान इन ख्यालात से बेपरवाह कैप्टन शकील के साथ आइंदा के लाइहा अमल पर बातचीत कर रहा था। आखिर ये तय हुआ कि इमरान और शकील वापस जाएंगे और उनके जाने के 1 घंटे बाद टीम मेंबर शोर मचा देंगे और अपनी बातों से चौकीदारों को मुतमईन कर देंगे कि यहाँ जुल्म और पाबंदी को बर्दाश्त न करते हुए उनके एक साथी ने खुदकुशी कर ली है। और वाकई उन सब ने चौकीदारों से लेकर अफसरों तक को यकीन दिला दिया कि मरने वाला इमरान ही था और अब मामला दब गया। मशीन एक बार फिर सारी चेकिंग करती। अगर अब वो रिकॉर्ड मिल जाए तो ठीक, अगर ना गैलरी की छत में लगे हुए बेशुमार रंगीन बल्बों में से किसी एक में से एक लेकर निकलती और इंसान बुखारात बनकर हवा में मिल जाता। उस गैलरी से सही सलामत निकल जाने के बाद कोई शख्स उस हॉल में पहुंच सकता है। सफदर और कैप्टन शकील ने सोचा कि इन इंतजामात से बच निकलना उनके बस की बात नहीं, लेकिन इमरान ने उन्हें तसल्ली दी कि वो सब कुछ करेगा और इमरान की तसल्ली बजाते खुद बहुत इत्मीनान बख्श थी। सफदर और कैप्टन शकील, जब तुम दरवाजे से गुजरो तो अपने जहन को बिल्कुल साफ कर लेना और कोई ऐसी हरकत करना जिससे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल नीचे हो ताकि बल्ब तुम्हारी तस्वीरें ना उतार सके। इसके बाद गैलरी में जैसा होगा देखा जाएगा। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। अब वो तीनों पावर प्लांट के पास पहुंच चुके थे।
آنے والے لمحات کا خیال آتے ہی صفدر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ ان کی ذرا سی غلطی سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیتی۔ بہرحال پوری دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے وہ تینوں آگے بڑھتے رہے۔ سب سے آگے عمران تھا، اس کے بعد صفدر اور آخر میں کیپٹن شکیل۔ ان تینوں کی جیبوں میں کوئی بم یا پستول نہیں تھا، کیونکہ عمران کے خیال میں اگر ان کے جیب میں ایسی کوئی چیز ہوتی تو وہ ایک لمحے میں پکڑے جاتے۔ اب دروازہ بالکل سامنے آ گیا ہے۔ چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر کی گئی حسین گلکاری اسے بڑی جاذب نظر بنا رہی تھی، لیکن جاذبیت غلط آدمی کے لیے موت کا پیغام بن جاتی۔ عمران نے اپنا پہلا قدم قالین پر رکھ دیا اور پھر دوسرا قدم، اور پھر وہ صحیح سلامت قالین کو پار کر گیا۔ اب صفدر کی باری تھی۔ صفدر نے بھی قالین پر قدم رکھتے ہی پوری قوت ارادی سے اپنے ذہن کو خالی کر دیا، اور پھر وہ بھی صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ اس طرح کیپٹن شکیل بھی پار ہو گیا۔ ان تینوں نے اپنے منہ نیچے کیے ہوئے تھے، اس لیے ان کی تصویر بھی نہ کھنچ سکی۔ اب سامنے موت کی گیلری تھی۔ اس گیلری میں جیسے ہی ان تینوں نے قدم رکھے، اچانک چھت پر لگا ہوا ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا، اور عمران نے خطرے کا نعرہ لگایا۔ اچانک ایک بلب سے ایک لہر تیزی سے نکلی، لیکن عمران اس لہر سے پہلے ہی چھلانگ لگا چکا تھا۔ لہر ایک قالین پر پڑی اور وہاں پڑا ہوا قالین بخارات بن چکا تھا۔ دوڑو! عمران چیخا، اور وہ تینوں اندھادھند بھاگنے لگے۔ اچانک چھت پر بلبوں کی لہریں کودنے لگی، لیکن وہ انتہائی پھرتی اور تیزی سے بچ رہے تھے۔ آدھا راستہ انہوں نے طے کر لیا تھا۔ اچانک کیپٹن شکیل نے صفدر کو دھکا دیا اور صفدر منہ کے بل آگے جا گرا۔ جہاں سے صفدر کا جسم آگے ہوا تھا وہیں لہر پڑی اور صفدر بال بال بچ گیا۔ اب عمران پچھتا رہا تھا کہ وہ پستول کیوں نہیں لائے۔ اگر پستول ساتھ ہوتے تو کم از کم یہ بلب تو توڑ دیتے۔ ان کے چاروں طرف بجلیاں سی کوند رہی تھیں۔ کسی بھی لمحے ان تینوں میں سے کوئی ایک یا تینوں ختم ہو سکتے تھے، لیکن قدرت ابھی تک تو انہیں بچا ہی رہی تھی۔ اچانک عمران نے نیچے پڑے ہوئے قالین کو دیکھا۔ راستے ہی میں بخارات بن چکا تھا، لیکن وہ تینوں ایک اور بلب کی زد میں آ چکے تھے۔ اب تینوں نے قالین کو اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ بھاگتے ہوئے قالین اٹھا کر اوپر پھینکنا بھی انہی لوگوں کا کام تھا۔ خدا خدا کر کے عمران تو گیلری کو پار کر گیا، دوسرے ہی لمحے صفدر، اور اب کیپٹن شکیل تھا تیسرے نمبر پر۔ اب وہ ایک چھوٹے کمرے میں تھے۔ اس بیان گیلری میں سے صحیح سلامت نکل آنا انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید قدرت کو ابھی ان کی زندگی مقصود تھی جو وہ صحیح سلامت اس گیلری سے نکل آئے تھے۔ عمران بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس سے زیادہ بھیانک راستہ اس نے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ ان کے جسم پسینے سے تربتر تھے۔ چند منٹ اس کمرے میں لگا کر دروازہ کھول کر ہال میں گھس گئے تھے۔ ہال میں گھستے ہی ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا وسیع و عریض ہال دیکھ رہے تھے۔ ہال میں سینکڑوں کی تعداد میں عجیب و غریب مشینیں لگی ہوئی تھی اور ہزاروں آدمی وہاں کام کر رہے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی نے بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی غلط شخص بھی دروازے اور گیلری کو پار کر کے ہال میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہ مطمئن تھے۔ یہ تینوں ان مشینوں کے پاس سے گزرتے چلے گئے۔ عمران نے کیپٹن شکیل کو مخصوص اشارہ کیا اور کیپٹن شکیل نے کونے میں لگی ہوئی ایک مشین کا رخ کیا۔ دوسرے ہی لمحے صفدر بھی ایک دوسری مشین کی طرف مڑ گیا۔ عمران کا رخ درمیان میں لگی ہوئی ایک بہت بڑی مشین کی طرف تھا۔ کیپٹن شکیل نے جس مشین کا رخ کیا تھا وہ ایک چھوٹی سی مشین تھی جس پر ایک آدمی کام کر رہا تھا۔ وہ مشین کے ہینڈل کو پکڑے سامنے لگے ہوئے ڈائل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ڈائل کو دیکھنے کے بعد اس نے ہینڈل چھوڑ دیا اور اطمینان سے پیچھے کی طرف مڑا، لیکن کیپٹن شکیل نے انتہائی پھرتی سے اسے مشین کی طرف کھینچ لیا۔ کیپٹن شکیل کا ایک ہاتھ اس کے منہ پر تھا اور ایک لمحے میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے اس کا مخصوص لباس اتارا اور خود پہن لیا اور پھر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اب کیپٹن شکیل اس مشین کو آپریٹ کر رہا تھا۔ وہ ہینڈل کو پکڑے اس طرح غور سے مشین کے ڈائل کو دیکھ رہا تھا۔ مشین کے ڈائل پر سینکڑوں سرخ اور سبز ہند سے بنے ہوئے تھے جن پر مختلف رنگ کی سوئیاں گھوم رہی تھی۔ ادھر صفدر جس مشین کی طرف گیا تھا وہ آٹومیٹک تھی، اس پر کوئی آدمی نہ تھا۔ عمران نے جس مشین کا رخ کیا وہ ایک بہت بڑی مشین تھی، اس پر 10 آدمی کام کر رہے تھے۔ عمران نے ایک کے کندھے پر ہاتھ مارا اور وہ جیسے ہی پیچھے مڑا، عمران نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا اور وہ چکراتا ہوا نیچے جا گرا۔ باقی ساتھی ششدر کڑے دیکھتے رہے۔ عمران نے ایک زوردار سیٹی بجائی اور خود اچل کر ایک زوردار ٹوکر مشین کے بنے ہوئے ڈائل پر مار دی۔ ڈائل چکنا چور ہو گیا کیونکہ عمران نے خاص طور پر بوٹ کے آگے لوہے کی پتی چڑھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی وہ ڈائل ٹوٹا ایک زوردار گونج پیدا ہوئی اور اس مشین کے تمام بلب بجھ گئے۔ ادھر صفدر نے آٹومیٹک مشین کے مختلف بٹن دبا دیے اور مشین رک گئی۔ ادھر اسے رکا ہوا دیکھ کر
कर दूसरी मशीन की तरफ बढ़ा। अभी वो चंद कदम ही चला होगा कि पहली मशीन एक जोरदार धमाके से फट गई। सफदर इस बार भी बाल बाल बच गया। उधर कैप्टन शकील ने हैंडल को उल्टा घुमा दिया और एक जोरदार गूंज पैदा हुई। कैप्टन शकील भागकर उस मशीन से परे हट गया। वो मशीन भी गलत इस्तेमाल की वजह से फट गई। उस मशीन का फटना था कि सारे हाल में जोरदार धमाके होने लगे और मुख्तलिफ मशीनें जोरदार धमाकों से फटने लगी। दरअसल कैप्टन शकील वाली मशीन गन मशीन थी। उस मशीन से मखसूस गैस सारी मशीनों को जाती थी। हैंडल उल्टा घुमाने से गैस का दबाव हर मशीन में बढ़ गया और दबाव की वजह से मशीनें फटने लगी थी। सारे हॉल में भगदड़ मच गई। काम करने वाले तमाम लोग गैलरी की तरफ भागे। इमरान, सफदर और कैप्टन शकील भी उनमें शामिल हो गए। जैसे ये तीनों गैलरी में पहुंचे, बल्बों से लहरें कूदने लगी, लेकिन हर बार उनकी पूर्ति उन्हें बचा जाती और उनकी जगह कोई और शख्स उसकी जद में आ जाता। अभी उन्होंने आधी गैलरी पार की थी कि एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे जलजला आ गया हो। हर चीज ज़ेरे जमीन होकर रह गई। तमाम लोग औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़े। इमरान को शदीद झटका लगा, लेकिन उसने अपने औसान काबू में रखे और वो तेजी से गैलरी पार कर गया। चंद ही लम्हों बाद कैप्टन शकील और सफदर भी गैलरी को पार कर गए और तेजी से एक तरफ भागने लगे। अभी वो तीनों 10-12 कदम ही दूर गए थे कि एक और कानपार धमाका हुआ और इतना जोरदार धमाका हुआ कि पावर प्लांट के परखचे उड़ गए। इमरान, कैप्टन शकील और सफदर तीनों तेजी से उस कोठरी की तरफ भाग रहे थे जहां तनवीर पाशा और जोसेफ डायनामाइट लगाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे और उन्हें सिर्फ इमरान, कैप्टन शकील और सफदर का इंतजार था। उसी लम्हों चारों तरफ भगदड़ मच गई। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। लोगों की समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो गया है। जूलिया को न्यूयॉर्क के साहिल से अगवा करके हेडक्वार्टर ले जाया गया था। यहाँ उस पर काफी सख्तियां करने के बावजूद उसका मुंह बंद रहा। फिर कैप्टन शकील ने उसे रिहा करा के अपने साथ मिला लिया। पहले तो कैप्टन शकील को गद्दार समझकर उसे गुस्सा आ गया, लेकिन जब कैप्टन शकील ने उसे तमाम किस्सा सुनाया तो उसका गुस्सा जाता रहा। जिस दिन पावर प्लांट की तबाही का मंसूबा था, उस दिन जूलिया के जिम्मे हेडक्वार्टर से बाहर के इंतजामात थे। जूलिया ने उनके रनवे का पता चला लिया, चुनांचे वो सीधी रनवे गई। उसने 4-5 हेलीकॉप्टर खड़े देखे। ये तमाम रनवे अंडरग्राउंड था। कंट्रोल रूम में बटन दबाने से ऊपर की छत एक तरफ हो जाती और तैयारे और हेलीकॉप्टर आसानी से बाहर परवाज कर जाते। अब मसला था ऐसे इंतजामात करने का कि फौरन एक हेलीकॉप्टर और कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया जाता। चुनांचे वो सीधी कंट्रोल रूम में चली गई। हेलो जूलिया, इधर कैसे भूल गई? कंट्रोल रूम ऑफिसर ने उसे देखते हुए कहा, क्योंकि कैप्टन शकील के साथ रहने से सब लोग उसे अच्छी तरह जान गए थे। वैसे ही सैर करने निकल आई थी। जूलिया ने जवाब दिया, आइए तशरीफ रखे। ऑफिसर ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। शुक्रिया, जूलिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आप लोगों का आसमान देखने को जी नहीं चाहता? हम तो रोजाना आसमान देखते रहते हैं, ऑफिसर ने लगावट से कहा। वो कैसे? जूलिया ने हैरत आमेज लहजे में पूछा। ये देखिए, ऑफिसर ने साथ लगे हुए बोर्ड में से एक सुर्ख रंग का बटन दबाया और एक हल्की सी गड़गड़ाहट से पूरे रनवे की छत एक तरफ को सरक गई और ऊपर आसमान साफ नजर आने लगा। जूलिया आसमान को देखकर खुशी से तालियां बजाने लगी। बहुत खूब, बहुत खूब, ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है और वाकई ये अजूबा है। जी हाँ, आपकी दुआ है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी वजह से मैंने काफी मुद्दत के बाद आसमान देख लिया। जूलिया ने सुर्ख रंग का बटन जहन में रखते हुए कहा। आप स्विस हैं? ऑफिसर ने पूछा। जी हाँ, मैं स्विस हूँ, जूलिया ने आह भर कर कहा। तो आप इन काले लोगों के साथ कैसे मिल गई? बस मुकद्दर की खराबी समझिए। कैप्टन शकील ने अच्छा किया जो माकाजूंगा की अतात में आ गए। हम लोग जल्द ही तमाम दुनिया को फतह कर लेंगे और फिर कैप्टन शकील को कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। जी हाँ, देखिए कब मिलती है। मैं तो अब यहाँ के माहौल से उकता गई हूँ। क्यों? ऑफिसर ने हैरत से पूछा। दरअसल मैं कहती हूँ यहाँ से निकलूं तो किसी अंग्रेज से शादी करूं, जूलिया ने मासूमाना लहजे में कहा। वो ऑफिसर भी अंग्रेज था। ये सुनकर वो पूरी तरह संभल कर बैठ गया। अंग्रेज से क्यों? दरअसल मुझे अंग्रेज अच्छे लगते हैं, बाउसूल, क़िनात पसंद और रोमानी तबीयत के मालिक जो होते हैं। जूलिया ने उसकी तरफ गौर से देखा और मुस्कुरा दी। लेकिन क्या कैप्टन शकील इसको गवारा करेंगे? अरे शकील की परवाह कौन करता है? ये तो मजबूरी थी जो मैंने हाँ कर दी, वरना ऐसे लोगों की तरफ तो मैं आंख उठाकर भी ना देखूं। आप फिक्र ना करें, बंदा हर तरह की खिदमत के लिए हाजिर है, ऑफिसर ने बिल्कुल लट्टू होते हुए कहा। अब वो जूलिया के जिस्म को भूखी नजरों से देख रहा था। उसके देखने का अंदाज ही कुछ ऐसा था जैसे वो उसे कच्चा ही चबा जाने का इरादा रखता है। शुक्रिया, मैं आपके बारे में गौर करूंगी। आप भी तो अंग्रेज है ना? जूलिया ने पूछा। जी हाँ, आप फिक्र ना करें, मैं हर तरह से आपकी खिदमत करूंगा। नहीं, फिक्र ना करें, आप तो वैसे भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, जूलिया ने आखिरी पंदा कसते हुए कहा। अब ऑफिसर पूरी तरह पंदे में आ चुका था। मैंने आज तक हेलीकॉप्टर अंदर से नहीं देखा। अब मुझे हेलीकॉप्टर दिखाकर मेरी ये हसरत पूरी करेंगे?
लगे? जरूर जरूर, आइए, ये कौन सी बड़ी बात है, ऑफिसर ने उठते हुए कहा। वो और जूलिया निकलकर रनवे पर खड़े हुए एक हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गए। ये हेलीकॉप्टर रनवे के एक कोने में खड़ा था। उस ऑफिसर ने जूलिया का हाथ थाम लिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू कर दिया। जूलिया ने कोई एतराज न किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराती रही। वो दोनों हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए। ऑफिसर ने जूलिया को हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने का इशारा किया और जूलिया उछलकर अंदर बैठ गई। ऑफिसर ने उसे अच्छी तरह समझाया कि किस तरह हेलीकॉप्टर चलता है और किस तरह परवाज करता है काफी देर तक वो उसे समझाता रहा। फिर वो जूलिया का बूसा लेने के लिए झुका, लेकिन जूलिया ने उसे हाथ से हटा दिया और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। ऑफिसर भी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जूलिया ने हेलीकॉप्टर की पोजीशन को अच्छी तरह समझ लिया। चलाना तो खैर उसे पहले ही अच्छी तरह जानती थी। दरअसल वो देखना चाहती थी कि हेलीकॉप्टर की टैंकी में पेट्रोल कितना है, और उसने देख लिया कि हेलीकॉप्टर की टैंकी भरी हुई थी। उसे इत्मीनान हो गया कि अब वो और ऑफिसर दोबारा कंट्रोल रूम की तरफ जा रहे हैं। कंट्रोल रूम में जाकर वो काफी देर बैठी रही। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब लोग उछल पड़े। सारे लोग सरासीमा होकर कंट्रोल रूम से बाहर निकल आए। जूलिया समझ गई कि वो पावर प्लांट तबाह हो चुका है, जिसे सब लोग हैरानी से इधर उधर देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आया कि ये धमाका कैसे हुआ। चंद ही मिनटों बाद एक और जोरदार धमाका हुआ और पावर प्लांट की तरफ आग के शोले बुलंद होते नजर आए। थोड़ी देर बाद सब लोग इधर उधर भागते नजर आए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब जूलिया आहिस्ता आहिस्ता हेलीकॉप्टर की तरफ खिसक रही थी। जोसेफ, तनवीर और नाशाद डायनामाइट का बंडल उठाए कान की तरफ चले गए। वो आम लोगों की नजरों से छुपकर जा रहे थे। आम रास्ते से हटकर वो एक छोटी सी गैलरी से गुजरे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे मजदूर हो। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। कानों के पास पहुंचकर उन्होंने एक अकेली जगह पर भारी मिकदार में डायनामाइट लगा दिया और उस पर एक छोटी सी मशीन फिट कर दी। ये मशीन वायरलेस सिस्टम पर काम करती थी। वायरलेस पर जब मखसूस फ्रीक्वेंसी मिलाई जाती तो उस मशीन का बटन दब जाता और डायनामाइट फट पड़ता। कानों के करीब डायनामाइट दफन करने के बाद वो माकाजुंगे के खास रिहाइशगाह और दफातर की तरफ चले। रास्ते में उन्हें एक ऑफिसर ने रोक लिया। कौन हो तुम और ये क्या लिए जा रहे हो? हम मजदूर हैं और ये सामान दफ्तर पहुंचाना है, तनवीर ने कहा। दिखाओ मुझे ये क्या है। ऑफिसर कोई फर्शनास मालूम हो रहा था। तनवीर ने डायनामाइट का बंडल नीचे रखा और फिर अचानक उछलकर ऑफिसर को जोर से टक्कर मारी। ऑफिसर को टक्कर चूंकि गफलत में लगी थी, इसीलिए वो जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही तनवीर ने उसका गला दबोच लिया। ऑफिसर ने काफी जदोजहद की, लेकिन तनवीर ने उसे उस वक्त छोड़ा जब उसकी रूह खफसे अंसरी से परवाज कर चुकी थी। तनवीर ने उसकी लाश उठाकर एक तरफ कोने में डाली और खुद बंडल उठाकर आगे चले गए। दफातर के करीब पहुंचकर उन्होंने एक अकेली जगह पर डायनामाइट का पूरा बंडल जमीन में दफन कर दिया और उस पर भी वही मशीन फिट कर दी। ये मशीन छोटी सी थी और सरसरी तौर पर भी देखने से बिल्कुल महसूस नहीं होती थी। अब उनका आखिरी निशाना उनकी रिहाइश गाहें थी। वो तीनों तीसरा बंडल उठाए रिहाइश गाहों की तरफ चल पड़े। ये बंडल जोसेफ ने उठाया हुआ था। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता रिहाइश गाहों के करीब होते जा रहे थे। रिहाइश गाहों पर पहरा था। अचानक एक पहरेदार ने उन्हें रोक लिया। उसके हाथ में एक मशीन गन थी। कौन हो और इधर क्यों जा रहे हो? हम अपनी खाला के घर जा रहे हैं, तुम्हें कोई एतराज है? नाशाद ने मजाहिया लहजे में कहा। चौकीदार भी जोसेफ की तरह हट्टा कट्टा नजर आ रहा था, इसीलिए जोसेफ के हाथों में कुचली होने लगी। उसने चुपके से वो बंडल तनवीर के हाथ में दे दिया और फौरन आगे बढ़कर चौकीदार के करीब चला गया। जरा एक मिनट मेरी बात सुनो, जोसेफ ने उसे कहा। क्या बात है? उसने उकड़े हुए लहजे में कहा। तुम सुनो तो सही। दरअसल जोसेफ उसे एक तरफ आड़ में ले जाना चाहता था। चौकीदार जोसेफ के साथ चल पड़ा। एक तरफ ले जाकर जोसेफ ने उसे कहा, जरा संभल कर मिस्टर। और फिर चौकीदार की नाक पर जोरदार मुक्का पड़ा और चौकीदार लड़खड़ाया। खूब, तुम में तो काफी जान मालूम होती है। मशीन गन तो मुक्के के धक्के से गिर पड़ी थी। जोसेफ ने ठोकर मारकर उसे दूर फेंक दिया। अब जोसेफ बॉक्सिंग के लिए पूरी तरह तैयार था। चौकीदार भी मुकाबले पर डट गया। उसने जोसेफ को मुक्का मारना चाहा, लेकिन जोसेफ ने उसे एक हाथ से रोककर दूसरे हाथ से जोरदार पंच मारा और चौकीदार लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा। उसके नाक और मुंह से खून उबल पड़ा। तनवीर और नाशाद ने मौका गनीमत समझकर वहीं करीब ही तीसरा बंडल भी दबा दिया। इतनी देर में जोसेफ ने चौकीदार को अदमुआ कर दिया और फिर जोसेफ ने उसका गला दबाया। उसकी लाश एक तरफ डालकर अब वो तीनों तेजी से दोबारा अपनी कोठरी की तरफ चल पड़े। चलते चलते जोसेफ ने मशीन गन भी उठा ली, जो उसने तनवीर को दे दी। कैप्टन तनवीर की जेब में वायरलेस फ्रीक्वेंसी सेट करने वाला आला पड़ा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका भी कहीं करीब ही हुआ था। वो समझ गए कि इमरान का मंसूबा कामयाब हो चुका है। अभी कोठड़ी से वो काफी दूर थे। अचानक एक तरफ से गोली चल
चलने की आवाज आई और गोली जोसेफ के बाजू में घुसती चली गई। जोसेफ ने एक हल्की सी चीख मारी और पीछे मुड़कर देखा तो दूर दफातर के करीब एक चौकीदार हाथ में राइफल लिए खड़ा था। गालिबन उनको भागते देखकर उसने गोली चला दी थी। कैप्टन तनवीर ने जोसेफ को जख्मी देखा तो नौशाद को इशारा किया कि जोसेफ को थाम ले और खुद मुड़कर उस चौकीदार की तरफ मशीन गन चला दी। रेड रेड की मखसूस आवाज गूंजी और चौकीदार का जिस्म गोलियों की बौछार में कलाबाजियां खाने लगा। मशीन गन की आवाज सुनकर काफी चौकीदार इधर उधर से आ निकले, लेकिन ये तीनों इतनी देर में आड़ में हो चुके थे। अचानक एक बार फिर कानपाड़ धमाका हुआ, फिर अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ लोग सरासीमा होकर भागने लगे। ये तीनों भी उनमें शामिल हो गए। उनका रुख कोठड़ी की तरफ था। थोड़ी ही देर में वो कोठड़ी के करीब पहुंच गए। जोसेफ ने एक हाथ से जख्मी बाजू को संभाला हुआ था जिससे लगातार खून निकल रहा था। अभी उन्हें कोठड़ी के पास पहुंचे चंद लम्हे ही हुए थे कि इमरान, सफदर और शकील भागते हुए उनके करीब पहुंच गए। अब चारों तरफ खतरे के अलार्म बज रहे थे। इमरान ने आते ही तनवीर से पूछा, मंसूबा तैयार है? हाँ, कान, दफातर और रिहाइश गाहें। चलो ठीक है, वायरलेस सेट निकालो। और तनवीर ने जेब में हाथ डाला, लेकिन वो चौंक पड़ा कि वो वायरलेस सेट भागते हुए कहीं गिर पड़ा था। क्या हुआ? इमरान ने तनवीर का रंग बदलते हुए देखकर पूछा। वायरलेस सेट गुम गया है। क्या? ये कैसे हुआ? और सफदर को सारे मंसूबे और मेहनत पर पानी फेरता हुआ नजर आया। मालूम नहीं, कहीं गिर पड़ा। तनवीर ने उदास होकर कहा। गिर पड़ा? अरे ये भी कोई शायर का दिल है जो कहीं गिर पड़ता? मेरा दिल आपके पाँव में गिरा पड़ा है। इमरान ने मिसरे के जोड़ हिला दिए। चलो कोई बात नहीं प्यारे, अब जूलिया के इश्क में ठंडी आहें भरो। अब क्या करें? सफदर ने इमरान की बकवास पर ध्यान न देते हुए कहा। आओ मिलकर प्यार की बातें करें, जुल्फ की रुखसार की बातें करें। इमरान ने एक हाथ कान में रखते हुए एक मिसरा पढ़ा। सब के सब उसकी बेवक्त रागनी पर मुंह बना गए। इतनी देर में चारों तरफ सिपाही फैल गए जिनके हाथों में मशीन गने थी। उन्होंने नाकाबंदी कर ली थी और अब वो मुश्तबा अफराद को ढूंढ रहे थे। जाओ तनवीर, उसी रास्ते से वापस जाओ और वायरलेस सेट ढूंढ कर रनवे की तरफ हमें आ मिलना। और तनवीर अभी मुड़ा ही था कि एक शख्स तेज तेज कदम उठाता पास से गुजरा। उसने जाते जाते वायरलेस सेट इमरान के हाथ पर रख दिया और बोला, रनवे X2। ये यकीनन X2 की आवाज थी। अगले ही लम्हे वो एक गैलरी में मुड़ गया। X2 को यूं आजादी से माकाजोंगा के हेडक्वार्टर में चलते फिरते देखकर सफदर, नौशाद और तनवीर हैरान रह गए। लेकिन जल्दी ही वो संभल गए क्योंकि अब एक एक लम्हा कीमती था। वो फौरन रनवे की तरफ चले, लेकिन रनवे तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई थी और हर आदमी को रोककर उसकी तलाशी दी जा रही थी, चाहे वो अफसर हो या आम मजदूर। इमरान ने तनवीर से मशीन गन ली और उन्हें इशारा किया कि वो उसे अलहदा होकर चलें और सीधे रनवे पहुंचे। वहाँ जूलिया ने कोई ना कोई इंतजाम किया होगा। वो सब आगे बढ़े तो चौकीदारों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन रिट रिट की मखसूस आवाज गूंजी और चौकीदार सीने पर हाथ रखते जमीन पर तड़पने लगे। भागते भागते उन्होंने भी चौकीदारों के हाथों से मशीन गनें ले ली। अब बाकी चौकीदारों ने मोर्चे संभाल लिए। यहाँ भी सफदर मशीन गन लेकर एक तरफ खड़ा हो गया। उसने चौकीदारों के जवाब में फायरिंग कर दी। अब चौकीदारों पर दो तरफ से फायरिंग हो रही थी और बाकी लोग दूसरी गैलरी से चुप कर रनवे की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक इमरान की तरफ से एक जोरदार चीख बुलंद हुई और फायरिंग बंद हो गई। सफदर समझ गया कि इमरान ने दरअसल चाल चली है। उसने और भी ज्यादा शिद्दत से फायरिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसके पास राउंड खत्म हो गए। अब उसने मशीन गन फेंकी और एक तरफ भागा, लेकिन मोड़ मोड़ते ही तीन आदमियों ने उसे अपने शिकंजे में कस लिया। लेकिन सफदर तीन आदमियों के बस का नहीं था, चुनांचा अपनी कोहनी एक की पसलियों में इतने जोर से मारी कि वो चीख मारकर जमीन पर बैठ गया। दूसरे पर लात चली, तीसरे को टक्कर और फिर वो तीनों जमीन पर पड़े तड़प रहे थे और सफदर आगे भाग रहा था। अंधाधुंध भाग रहा था और मुख्तलिफ मोड़ मुड़ता जा रहा था। आगे अचानक उसे महसूस हुआ कि आगे रास्ता बंद है। वो साइड में मुड़ गया। उसे वहीं असलहा खाना नजर आया जहाँ से उन्होंने डायनामाइट, वायरलेस सेट और डायनामाइट पर लगाने वाली मशीन उठाई थी। इस बार साथ ही पावर प्लांट फटने से उसकी दीवारें टूट गई थी और असलहा हर तरफ बिखरा पड़ा था। सफदर जल्दी से एक बड़े सुराख से अंदर चला गया और उसने डायनामाइट के 3 बंडल उठाए, उन्हें खाली पेटियों के ढेर के पीछे रख दिया और मशीन उन पर फिट कर दी। बाकी असलहा में से एक मशीन गन उठाकर उसने हाथ में ले ली। 10 दस्ती बम उसने अपनी जेब में डाल लिए और फिर रनवे की तरफ चल पड़ा। अब असलहा खाना से उसे रास्ता आता था, चुनांचे वो छुपता छुपाता रनवे के करीब पहुंच गया। तमाम रनवे पर पहरा लगा हुआ था। टीम के बाकी मेंबर और इमरान उसे कहीं भी नजर न आए। अचानक उसे जूलिया नजर आ गई। एक हेलीकॉप्टर के पास खड़ी वो हैरान नजरों से चारों तरफ देख रही थी। अफरा तफरी में किसी की नजर उस पर ना पड़ी। सफदर ने तेजी से रनवे की सड़क पार की और छुपता छुपाता उस हेलीकॉप्टर की तरफ खिसकने लगा जिसके करीब जूलिया खड़ी थी। जैसे ही वो जूलिया के करीब पहुंचा, जूलिया ने उसे देख लिया। उसके चेहरे पर
पर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि उस वक्त हालात इंतहाई नाजुक थे। सफदर ने उसके हाथ में चुपके से एक दस्ती बम दे दिया और खुद साथ ही एक ट्रक नुमा गाड़ी के पीछे गया। थोड़ी देर में कैप्टन शकील, तनवीर, नाशाद और जोसेफ भी पहुंच गए। जोसेफ का खून बहना खुद ब खुद बंद हो गया। सफदर, तुम कंट्रोल रूम में जाओ और सामने लगे हुए बोर्ड में सुर्ख रंग का बटन दबा देना, ऊपर की जानिब रनवे की छत हट जाएगी, जूलिया ने सफदर से कहा। और सफदर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कंट्रोल रूम में चला गया। चौकीदार ने उसे रोकना चाहा, लेकिन चौकीदार को पड़े हटाकर वो सीधा ऑफिसर के पास पहुंच गया। उधर जूलिया ने सबको हेलीकॉप्टर में बैठने का इशारा किया। वो एक एक करके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। अभी वो अच्छी तरह बैठे भी ना थे कि चौकीदारों की नजर पड़ गई। उन्होंने हेलीकॉप्टर पर गोलियों की बौछार कर दी। जूलिया बहुत ज्यादा घबरा गई। सफदर ऑफिसर के नजदीक जाकर सीधा बोर्ड की तरफ बढ़ गया और एक सेकंड बाद उसने सबके दरमियान लगे हुए सुर्ख बटन को दबा दिया। हल्की सी गिड़गिड़ाहट हुई और रनवे पर लगी हुई छत एक तरफ हट गई। सफदर ने ये सब कुछ इतनी तेजी से किया था कि सब हैरान बैठे के बैठे रह गए। सफदर फौरन वापसी के लिए मुड़ा। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो सबको होश आया। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन सफदर ने दस्ती बम एन खींचकर कंट्रोल रूम में फेंक दिया और खुद बाहर निकल आया। एक जोरदार धमाका हुआ और कंट्रोल रूम के परखचे उड़ गए। उधर जैसी ही छत हटी, जूलिया ने हेलीकॉप्टर उड़ा दिया क्योंकि दुश्मन चारों तरफ से हेलीकॉप्टर को घेर रहा था। अब टीम में सफदर और इमरान बाकी रह गए थे। एक एक मिनट कीमती था। जूलिया ने हेलीकॉप्टर को आहिस्ता से ऊंचा किया। इतनी देर में सफदर करीब पहुंच चुका था। उसने दौड़कर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया। अब वो हेलीकॉप्टर के नीचे लटक रहा था। अभी उसके कदम जमीन से 2-3 फुट ही ऊंचे उठे थे कि हेलीकॉप्टर को जोरदार झटका लगा और सफदर के हाथ छूट गए। वो धड़ाम से जमीन पे आ गिरा। दरअसल जूलिया जल्दी से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल ना कर सकी थी, इसीलिए झटका लगा। सफदर जमीन पर गिरते ही उठ खड़ा हुआ, लेकिन चारों तरफ से दुश्मन ने उसे घेर लिया और सफदर ने दस्ती बम निकालकर चारों तरफ फेंक दिए। जोरदार धमाके हुए और दुश्मन के सिपाहियों के परखचे उड़ गए। हेलीकॉप्टर अब काफी ऊंचा उड़ चुका था। इमरान का अभी तक कोई पता ना था। अचानक एक तरफ से इमरान एक आदमी को उठाए हुए नजर आया। इमरान का जिस्म जख्मी था, चेहरे पर खराशें थीं। जिस आदमी को उसने अपनी कमर पर लाद रखा था वो बेहोश मालूम होता था। सफदर ने इमरान के पीछे एक और कद-आवर भरे हुए जिस्म वाला शख्स भी दौड़ता हुआ देखा। उसने भी एक भारी भरकम शख्स को कमर पर लादा हुआ था। जूलिया का हेलीकॉप्टर काफी ऊंचा उड़ गया था। चुनांचा अब वो एक और हेलीकॉप्टर की तरफ लपके, लेकिन दुश्मन के सिपाहियों ने एक बार फिर चारों तरफ से उन पर हमला कर दिया। इमरान और उस दूसरे शख्स को, जिसे सफदर पहचान गया था कि ये वही शख्स है कि जिसने उन्हें वायरलेस सेट दिया था और जो यकीनन X2 है, उन्होंने अपनी कमर पर लादे हुए आदमियों को जोर से जमीन पर पटखा और दुश्मन से दस्त बदस्त लड़ने लगे। इमरान के जौहर देखने के काबिल थे। जख्मी होने के बावजूद वो इंतहाई फुर्ती से लड़ रहा था। उधर X2 के जोरदार मुक्कों ने हशर बर्पा कर दिया। सफदर भी हत्तल मकदूर लड़ रहा था कि ऊपर से जूलिया ने उन्हें देख लिया। उसने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा और कैप्टन शकील ने मशीन गन से दुश्मन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि सफदर, इमरान और X2 भी लड़ाई में शामिल थे, लेकिन कैप्टन शकील का निशाना इतना सही था कि मजाल है कि कोई गोली उनको लगती। फायरिंग से आने वाले घबरा कर इधर उधर भाग गए। जूलिया ने हेलीकॉप्टर वापस उतारा और सफदर, X2 और इमरान ने 2 आदमियों को उठाकर हेलीकॉप्टर में फेंका और खुद भी सवार हो गए। अब हेलीकॉप्टर दोबारा उड़ने लगा। अभी तक हम पर बड़े पैमाने पर हमला नहीं हुआ और न ही हमें कत्ल करने की कोशिश की गई। सफदर ने हैरान होते हुए इमरान से पूछा। दरअसल वो लोग माकाजुंगा के अहकामात के मुंतजिर हैं और माकाजुंगा इस वक्त बेबस हुए हमारे सामने पड़े हैं। माकाजुंगा? क्या यही माकाजुंगा है? सबने हैरत से पूछा। जी यही है जो दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। X2 एक तरफ चुपके से बैठा था। सब उसकी तरफ चोर नजरों से देख रहे थे, लेकिन साफ मालूम होता था कि X2 मेकअप में है। मेकअप भी बेढंगा सा था। उसके बेढंगे होने का मकसद ही यही था कि सब अच्छी तरह पहचान जाए कि ये मेकअप है। जब हेलीकॉप्टर काफी ऊंचा निकल गया तो इमरान ने जेब से वायरलेस सेट निकालकर उस पर मखसूस फ्रीक्वेंसी डायल कर दी। एक लम्हे बाद जोरदार धमाके हुए और फिर नीचे आग के शोले और पत्थर हवा में उड़ते नजर आए। माकाजुंगा हेडक्वार्टर तबाह हो चुका था और माकाजुंगा दोनों इमरान की हिरासत में थे। सबने इत्मीनान का सांस लिया और हेलीकॉप्टर इमरान के मुल्क की तरफ उड़ा चला जा रहा था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि आपकी मदद से हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया।